transaction and coverage of fraud-prone areas. So means now perspective of this concurrent audit is totally changed. And now they want from us कि हम रूटीन चेकिंग के साथ साथ फ्रॉड प्रोन एरियाज पे भी ज्यादा ध्यान दें डेली बेसिस पे. So institute has also revised our guideline from 2012 to 2016. Its manual on concurrent audit 2016 edition is now effective. So friends, let's start the journey towards concurrent audit of the bank. So first, in bank, there are two type of audit. First is internal and the second is external audit. Internal audit will be done by the bank's own staff and it is appointed, auditor has been appointed by the inspection department of the bank. Scope of internal audit is unlimited and it covers every aspect of branch working. Every means each and every aspect of the branch working. In internal audit, generally surprise inspection at regular intervals, it has been planned. Maybe internal audit किसी बैंक में 18 months में होती है, किसी बैंक में 12 months में होती है. If we talk about external audit, in that case, a chartered auditor has been appointed by a firm of chartered accountants uh, and appointed by the bank, by RBI or government authority, and वो generally chartered accountant ही होते हैं. And that scope is defined already in the appointment letter, either letter issued by the bank or RBI or government authority, depends on the appointing authority. And generally pre-intimated to the branch to be audited. In concurrent audit हमको पहले से बताते हैं which branch we are going to allot you और आपको कौन सी branch audit करनी है, उसके ऊपर आपको अपनी acceptance देनी होती है. In external these type there are some audits just like concurrent audit, revenue audit, stock audit, system audit, KYC audit, RBI audit for limited purpose, government transactions audit होती है, cash verification of currency test branches, general inspection of company, cooperative banks, etc. And some audit by government authority of branches conducting government transactions. So these kind of audits generally be known as a external audit. Now coming to the concurrent audit. What is concurrent audit? The concurrent audit is a systematic examination of all the financial transactions at a branch on continuous basis to ensure accuracy and due compliance with the internal system, procedure, and guideline of the bank. See, definition is really important. If you go by the definition, the first is a systematic examination, which means there is a process जिसको आपको follow करना है of all financial transaction. मतलब आपका scope is limited होते हुए भी unlimited है. Continuous basis, daily basis पे जो भी ब्रांच में एक्टिविटीज हो रही है आपको हर एक एक्टिविटीज हर एक ब्रांच की एक्टिविटीज को चेक करना है, आपकी नजर उसके ऊपर होनी चाहिए. So in short, in concurrent audit, it is expected that the auditor or his representative visit the branch frequently. अब ये frequently 2 या 3 दिन वीक में हो सकता है, डेली बेसिस हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स कि ब्रांच की साइज क्या है, उसमें कितने एडवांसेस हैं और आपका अपॉइंटमेंट कैसे होता है. बहुत सारी बैंक में डेली बेसिस पे आपके स्टाफ को विजिट करना होता है, ऑडिटर्स वंस इन अ वीक विजिट करने की कंप्लायंस होती है. एंड चेक ऑल द वाउचर्स, transaction in various accounts, loans, documents, etc. and give his observation at regular interval. Regular interval means monthly reporting, quarterly, half yearly as applicable in the bank. Through audit notes to the branch for rectification. आपको अपनी रिपोर्ट तो देनी ही है, एट द सेम टाइम आपको आपके नोट्स भी बनाने हैं और आपको ये भी देना है कि ब्रांच को रेक्टिफिकेशन की कहाँ कहाँ जरूरत है. And he should also ensure that the irregularities are either rectified or satisfactory explanation is given by the branch staff. आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी, आपका रोल यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है. जो भी इरेगुलरिटीज आपने पॉइंट आउट की थी वो ब्रांच ने रेक्टिफाई की है या नहीं की है,
उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला या नहीं मिला, वो भी आपको प्रिपेयर करना है और वो भी आपको एंश्योर करना है कि होना चाहिए. In the report, only those irregularities which were pointed out to the branch but not rectified till the end of the month or quarter are to be reported. Fair enough, आपको रिपोर्ट में वो ही irregularities लेके जाना है जो ऑन द स्पॉट रेक्टिफाई नहीं होती है. आप डेली बेसिस पे वहां चेक कर रहे हैं, आपने ऑफिशियल्स को बता दिया, उन्होंने इमीडिएट रेक्टिफाई किया, तो आपको वहां पर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. जो रेगुलरिटीज मंथ के एंड में भी आपको पेंडिंग रह जाती है और रेक्टिफाई नहीं होती है, दैट irregularities you have to report in your monthly or quarterly report. The important here is to note that concurrent audit report should not be routine report, but it should help the management of the bank in improving the performance of the branch. आप बैंक में रोज जाते हैं, वहां रोज बैठते हैं, आप बाहर से जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, वहां पर जो वर्कर काम कर रहे हैं वो लोग से मिस हो सकती है. तो आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस ब्रांच का कैसे इंक्रीज हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, उसके बारे में भी सजेशंस आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं एज एन कॉन्करेंट ऑडिटर. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? सी ऑडिट तो बहुत सारी होती है बैंक में, जैसे मैंने बोला स्टॉक है, रेवेन्यू है, केवाईसी है, हर एक बैंक की एक्टिविटीज की ऑडिट आरबीआई करवाती है, बट स्टिल कॉन्करेंट ऑडिट है पिक्चर में, और अभी तक भी है और आगे भी चलती रहेगी. तो क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्या जरूरी है कि आरबीआई को कॉन्करेंट ऑडिट मैंडेटरी करना पड़ा, या बैंक में वो फील करती है कि कॉन्करेंट ऑडिट होना चाहिए? You are the part, you means as a concurrent auditor, you are the part of the management, part of the bank. तो आप वहां जब रोज जाते हैं तो उनका पर्पस ये है कि कोई भी इरेगुलरिटीज आपके सामने आती है, आप इमीडिएटली रिपोर्ट करें. क्यों? ताकि वो आपके लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है, फ्यूचर में कोई सीरियस एरर और इरेगुलरिटीज नहीं आ जाए. बिकॉज ऑफ आज हमने थोड़ा केयरलेसनेस दिखाई है, कुछ चीजें मिस कर दी, नॉन कंप्लायंस कर दी, और उसकी वजह से फ्यूचर में कोई बड़ा फ्रॉड पिक्चर में नहीं आ जाए, उसके लिए कॉन्करेंट ऑडिट इज एन concurrent audit play as a role of early warning signal. That's the reason concurrent audit is important. Object of concurrent audit: first, to ensure compliances of let down system and procedures. जो भी सिस्टम प्रोसीजर्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये इंश्योर करना. बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड, जो भी प्रिस्क्राइब सिस्टम है वो प्रॉपरली मेंटेन कर रही है ब्रांच या नहीं कर रही है. नाउअडेज क्या होता है, आप जब भी ब्रांच में जाएंगे और उनसे कुछ भी डॉक्यूमेंट या रजिस्टर्ड मांगते हैं, एक आंसर मिलता है. सब कुछ सीबीएस में मिलता है आजकल, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, इसलिए हम कुछ भी मेंटेन नहीं करते हैं इन फिजिकल कॉपी. आई एग्री कि बहुत सारी चीजें हमको सिस्टम से रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, बट स्टिल देर आर सम रजिस्टर्ड आर कंपल्सरी टू बी मेंटेन्ड बाय द ब्रांच, बिकॉज उसमें ऑफिशियल्स के सिग्नेचर्स होते हैं, बोरोअर के साइंस होते हैं. वी विल डिस्कस एट दैट टाइम व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द लोन्स एंड एडवांसेस. तो अगर ऐसे कोई रिकॉर्ड रजिस्टर्ड जो कि मेंटेन करना कंपल्सरी है, वो भी आपको चेक करना है कि वेदर ब्रांच इज मेंटेनिंग इट और नॉट. प्रॉपर मेजर्स लिए जा रहे हैं या नहीं, ताकि फ्यूचर में कोई फ्रॉड नहीं हो और डिफिकल्टीज नहीं हो, ये भी इंश्योर करना कॉन्करेंट ऑडिट का पार्ट है. टू डिटेक्ट एंड अरेस्ट लीकेज ऑफ इनकम. लीकेज ऑफ इनकम डेफिनेटली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. बैंक का बिजनेस क्या क्या हो सकता है, अगर हम स्मॉल से स्टार्ट करें, चेक बुक चार्जेस, चेक रिटर्न चार्जेस, स्मॉल स्मॉल चार्जेस होते हैं, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, स्टॉक स्टेटमेंट के, इंस्पेक्शन के. तो ये सारे चार्जेस पीरियडिकली बैंक रिकवर कर रही है या नहीं कर रही है. Evaluating the quality of customer services provided and giving useful suggestions. कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या सजेशन है, उसको इवेल्युएट करके सजेशंस देने के लिए का मेन ऑब्जेक्ट कॉन्करेंट ऑडिट का. ओवरऑल परफॉर्मेंस ब्रांच का इवेल्युएट करना, एसेस करना, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके. ऑपरेशनल लेवल पे इनएफिशिएंसी है तो उसको रिपोर्ट करना.
डॉक्यूमेंट्स जो भी सबमिट किए हैं फॉर कोई भी एडवांसेस के लिए एक प्रॉपर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। बोरोवर से उसने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी करना, फिजिकल चेकिंग करना। अगर आपको खुद को जरूरत पड़े तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉन्करेंट ऑडिटर को खुद जाके फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक एसेट कंपलसरी है करना। तो आप जाके वो इंश्योर करना इज इम्पोर्टेंट, कंप्लीटनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड फैक्ट। रेक्टिफिकेशन टाइमली रेक्टिफाई हो रही है, इरेगुलरिटी टाइमली रेक्टिफाई हो रही है या नहीं हो रही है, उसका प्रॉपरली फॉलो अप लेना। वेरीफाई प्रॉम्प्ट टाइमली एंड रेगुलर सबमिशन ऑफ द पीरियोडिकल एंड स्टेट्यूटरी रिटर्न। टाइमली रिटर्न सारे भर रही है कि नहीं ब्रांच, टीडीएस के रिटर्न, जीएसटी के रिटर्न, अदर एनी स्टेट्यूटरी कंप्लायंसेस आर देयर, तो ऑन डेली बेसिस वो हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी इंश्योर करना। Now, what is the responsibility on us as a concurrent auditor? We need to act as a part of management process. कई बारी क्या होता है, हम ये सोचते हैं और हम वहां जाकर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको सारी चीजें सामने से मिल जानी चाहिए। अगर आप स्टेचुटरी ऑडिट और कॉन्करेंट ऑडिट को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस इज दैट कि स्टेचुटरी ऑडिट में यू आर अ एक्सटर्नल पर्सन, यू आर आउटसाइड द पर्सन, बट इन कॉन्करेंट ऑडिट यू आर पार्ट ऑफ दिस बैंक, पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो यू आपको मैनेजमेंट को, ब्रांच को हेल्प करने के लिए आपकी साइड से क्या सजेशन है, उस वे में, उस पर्सपेक्टिव में सोचना और एक्ट करना होता है। So you are part of internal control system. This is your responsibility. You are responsible for detection of lapses in internal control system and operational areas. अगर कहीं पे है तो वो डिटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। डेली चेकिंग or responsibility of detecting fraud is most important responsibility on the shoulder of concurrent auditor. Responsible for omission and commission in respect of transaction verified. You are responsible to plan the audit so as to reasonably detect fraud or irregularity. तो अगर हम स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट की बात करें तो जनरली वो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है, बट लास्ट में एक लाइन लिखी होती है, द गाइडलाइन प्रोवाइडेड आर इलिस्ट्रेटिव इन द नेचर एंड नॉट एग्जॉस्टिव। So therefore, scope of concurrent audit is wide as compared to other type of external audit. फॉर्मेट जनरली बैंक प्रोवाइड करती है इन द मोस्ट ऑफ द केसेस एंड स्पेशली इन द कंकरेंट ऑडिट आई कैन से 100% केसेस में फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बैंक के थ्रू प्रोवाइड किया है। स्कोप ऑफ द कंकरेंट ऑडिट, अगर हम एरियाज की बात करें तो दीज आर द एरियाज: कैश डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस, bank guarantee, KYC, regular monitoring on large borrowers, overdue position and NPA, verification of suspense sundry accounts, loan outstanding entries, revenue leakage, high value transactions, clearing transaction and check bill collection, foreign exchange transactions, government business like direct indirect tax के transaction, control returns के submission timely हो रहे हैं या नहीं। तो area wise we can classify this way. तो इन नटशेल अगर हम बैंक के फंक्शन की बात करें तो बैंक का फंक्शन जो है टोटली बैंक ब्रांच की वर्किंग तीन पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज जनरल बैंकिंग, द सेकंड इज लोन्स एंड एडवांसेस एंड थर्ड इज अदर सर्विसेज। इन जनरल बैंकिंग दिस इज द लिस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन in each and every area. So general banking includes cash, deposit, remittances. We know that what is cash and deposit is account opening, transfer of account, one bank to another bank, term deposit, remittances, RTGS, NEFT, clearing, check clearing, ECS or manually, it depends. Outward and inward bills for collection, housekeeping. So these are the general banking areas, staff related activities, branch security, licenses, office accounts, bank accounts, security, stationery, delivery of checkbooks, postage and courier, customer service, and submission of return and payment of taxes.
तो इन जनरल बैंकिंग दीज आर द एरियाज, और यहाँ पे आपको हर एक एरिया में आपको चेक करना है, यू कांट स्किप इवन वन एरिया. So first we will talk about in the cash department. कैश डिपार्टमेंट में आपको क्या क्या चेक करना होता है. आपकी मंथली ऑडिट है, कंकरेंट ऑडिट है, वंस ट्वाइस इन अ मंथ और थ्राइस इन अ मंथ आपको सरप्राइज विजिट करना है, सरप्राइज फिजिकल कैश वेरिफिकेशन करना है. जनरली होता क्या है, कैश वेरिफिकेशन की एक्टिविटी हमारा स्टाफ परफॉर्म करता है, और स्टाफ जब तक पहुंचता है तब तक बैंक ऑलमोस्ट ओपन हो चुके होते हैं. तो वी प्रिफर कि इवनिंग में जब भी कैश क्लोज होगा तब हम कैश कैलकुलेट कर लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे. बट कुछ केसेस में आपको सरप्राइजली जब भी मॉर्निंग में बैंक ओपन होती है तब आपको कैश वेरिफिकेशन करना चाहिए, या आपकी विजिट इस तरह से प्लान करनी चाहिए, कभी आप मॉर्निंग में कर रहे हो, कभी इवनिंग में, कभी आफ्टरनून में, एंड देन रिको यू आर गोइंग टू प्रिपेयर समथिंग काइंड ऑफ. कैश रिटेंशन लिमिट, कि हर एक ब्रांच में कैश रिटेंशन लिमिट डिसाइड होती है. कैश रिटेंशन लिमिट का मतलब क्या होता है, वो ब्रांच उतना कैश अपनी ब्रांच में रख सकती है. से एग्जाम्पल, अगर किसी ब्रांच की कैश रिटेंशन लिमिट 20 लाख रुपीज है, तो वो कोई भी दिन पे अगर बैंक में कैश 20 लाख रुपीज से ज्यादा होता है तो उसको वो कैश वापस भेजना पड़ेगा टू द आइदर करेंसी टेस्ट, और जो भी इसकी कंसर्निंग अथॉरिटी है वहां पर, डिपार्टमेंट है वहां, उसको भेजना पड़ेगा. बट प्रैक्टिकली क्या होता है, आई फाउंड इन मोस्ट ऑफ द बैंक ब्रांचेस डेली बेसिस पे कैश हायर साइड पे होता है. कॉन्करेंट ऑडिटर रिपोर्ट करते हैं, बट जब हम उनको बोलते हैं कि आप भेजिए, तो उनको जैसे आज के दिन पे मेरा कैश कलेक्शन हुआ 30 लाख रुपया, 50 लाख रुपया कैश कलेक्ट हुआ, और 20 लाख रुपीज आउट गोइंग हुआ, तो मेरे पास में बैंक में ब्रांच में आज की डेट में 30 लाख रुपया है. तो अगर हम लॉ के थ्रू जाए तो डेफिनेटली 10 लाख रुपया ब्रांच को ट्रांसफर करना चाहिए. बट प्रैक्टिकली वो क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट डे मैडम हमको कभी ज्यादा कैश लगेगा, तो अगेन डेली भेजो, वापस लेके आओ. तो वो वापस से अगर थोड़ा बहुत कैश ऊपर नीचे होता है तो वो वापस नहीं भेजते हैं. प्रैक्टिकली हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर 20 लाख की कैश रिटेंशन लिमिट है, बट 80 लाख 90 लाख का कैश ब्रांच में होता है. ये रिपोर्ट करना क्यों कंपलसरी है, हर एक बैंक में हर एक ब्रांच के रिटेंशन लिमिट के बेसिस पे उसका इंश्योरेंस होता है. तो इफ इन केस अगर कोई ऐसा केसेस हो जाता है, बैंक में रॉबरी हो जाए, कैश चोरी हो जाए, या कैश कहीं चला जाए, तो उस केस में आपको अगर आपका कैश इंश्योर्ड है तो आपको आपकी रिटेंशन लिमिट तक का कैश मिलेगा, उसके ऊपर का कैश नहीं मिलेगा. तो यू कैन इमेजिन कि जितना भी कैश मेरा रिटेंशन लिमिट के ऊपर है दैट इज माई अनइंश्योर्ड. तो ये आपको रिपोर्ट करना बाय डिफॉल्ट कंपलसरी है. अगर आपकी ब्रांच में एटीएम है तो आपको एटीएम का कैश भी वेरीफाई करना है. कैश डिपार्टमेंट में कैश ट्रांजैक्शन के लिए वेरियस रजिस्टर्ड होते हैं जिसके ऊपर 2 पर्सन के साइन होते हैं. आपको वो रजिस्टर भी चेक करना है, सिग्नेचर्स भी चेक करना है, और अगर उस दिन पे कोई एक्सेस या शॉर्टेज हुआ है कैश का तो वो प्रॉपरली हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट हुआ या नहीं हुआ ये भी चेक करना. कैश कैबिन में क्या सेफ्टी मेजर्स यूज होते हैं, प्रॉपरली कवर्ड है या नहीं, ऐसे ही कोई भी पॉपअप करके घुस सकता है क्या, वो भी आपको चेक करना है, उसके ऊपर भी कमेंट करना है. कोई सॉर्टिंग ऑफ नोट्स इनटू सॉइल्ड एंड इशुएबल है, कोई स्टैपलिंग ऑफ कैश पैकेज, एक्सचेंज ऑफ सॉइल्ड एंड टॉर्न नोट्स है, तो वो भी आपको देख के रिपोर्ट करना है. प्रॉपर अलार्म सिस्टम कैश कैबिन में है या नहीं, और है तो वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं. अल्ट्रा वायलेट लैम्प इज इन वर्किंग कंडीशन और नॉट, बिकॉज ये फेक नोट को डिटेक्ट करने में काम आती है. तो आपको एक बार ऐसे ही ट्रायल पे बेसिस पे चेक करके देखना है कोई भी पेपर डाल के कि वेदर दिस इज फेक नोट और नॉट. तो ये चेकिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है. नोट काउंटिंग मशीन, एक बार आप एक पैकेट को मैन्युअली कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद मशीन में डाल के चेक कीजिए वेदर मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. डिस्प्ले ऑफ नोटिस, हम कैश काउंटर के बाहर एक डिस्प्ले नोट पढ़ते हैं कि प्लीज काउंट योर कैश बिफोर लीविंग द काउंटर. इट इज कंपल्सरी, ये होना चाहिए. टोकन सिस्टम होते हैं, आपके कुछ टोकन्स आपको वेरीफाई करने हैं कि प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं. कई बार ये ऐसा होता है वो टोकन मिसिंग होते हैं और बैंक उसको रिपोर्ट भी नहीं करती है.
अगर कोई टोकन मिसिंग है तो वो डिस्प्ले पे भी दिखना चाहिए। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए आप पेन नंबर ले रही है कि नहीं ब्रांच, और पेन नंबर और प्रॉपर रिकॉर्ड्स वेरीफाई कर रही है या नहीं, और वाउचर्स में एंट्री हो रही है कि नहीं, दैट ऑल्सो यू नीड टू चेक। All the cash vouchers are to be with cash received, cash paid stamp duly signed by the cashier। तो वो कैशियर का साइन और स्टैम्प है या नहीं वो भी चेक करना है। तो अकाउंटिंग ऑफ लेट रिसिप्ट, कई बार क्या होता है हमारे बैंकिंग आवर्स क्लोज हो जाते हैं और तभी कोई कैश आता है, हमने ले लिया, बट वो एंट्री बाद में प्रॉपरली होती है या नहीं वो आपको चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है इन केस। The second general banking department is deposit. Deposit, there are two type of deposit. One is demand deposit and the second is time deposit. Demand deposit सेविंग बैंक, करंट बैंक, सेविंग में इंटरेस्ट सब होता है, करंट में जनरली नहीं होता है। टाइम डिपॉजिट, जिसको हम टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, जो कि ऐसा डिपॉजिट इन विच इज पेबल आफ्टर स्पेसिफाइड टर्म, लाइक फिक्स डिपॉजिट 3 months, 6 months, 1 year, 2 years FD, recurring deposit RD, saving cum fixed deposit, Swift account, non-resident account. So these are the example of time deposit. इसमें आपको क्या चेक करना है? So first is a new case account opening form. Account opening form duly filled and signed by the depositor is required for opening of any type of account. Every account is treated as a separate account. ये हम क्यों बोलते हैं कि अगर हमारे पास किसी पार्टी का ऑलरेडी एक अकाउंट है और वो दूसरा अकाउंट ओपन करता है, तो हम कई बार वो केवाईसी नहीं लेते हैं या उस फॉर्म को फिल नहीं करते और उस बेसिस पे अकाउंट ओपन कर देते हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में आपको बहुत सारी मिस्टेक्स मिलेगी। एक फॉर्म कस्टमर को दिया जाता है और उससे सिर्फ साइन ले लिया जाता है, वो फॉर्म फिलअप भी नहीं होता है। उसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिकॉज उन पॉइंट के बेसिस पे आपको उस अकाउंट का ट्रांजैक्शन मॉनिटर करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इज रियली इंपॉर्टेंट। केवाईसी कंप्लायंसेस, केवाईसी कंप्लायंसेस, हम पैन कार्ड ले लेते हैं, आधार कार्ड ले लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेके सिर्फ फॉर्मेलिटी करके रख लेते हैं, बट केवाईसी इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली इन द केस ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट, आरबीआई, और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो डिसिप्लिनरी एक्शन ऑल्सो कैन बी टेकन, और इन द केस ऑफ केवाईसी they will not listen any kind of excuses, because concurrent audit में अगर आप केवाईसी प्रॉपर चेक नहीं करते हैं तो उसका कोई भी जस्टिफिकेशन आपके पास में नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला है। एंट्री इन द सिस्टम, सारी एंट्री जो फॉर्म में है वो एज इट इज ओपनिंग फॉर्म में जो लिखी है वो बैंकिंग सिस्टम में एंटर हुई है या नहीं हुई है, सिग्नेचर स्कैनिंग प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। जनरली फर्स्ट टाइम जब ये अकाउंट ओपन होता है तो प्रीफर कैश किया जाता है कि आप उसमें कैश डिपॉजिट कर लीजिए, बाद में ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर अलाउ करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेदर प्रॉपरली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एंटर्ड और नॉट। कई बार क्या होता है जैसे एफडी है, अदर टर्म डिपॉजिट है, इंटरेस्ट रेट हमारी फिक्स है कि आज की डेट पे जो इंटरेस्ट रेट है वो एप्लीकेबल है। आप जब भी मैनेजर को बोलने जाओगे कि मुझे ये चेक करना है, आपको आंसर वही मिलेगा, सब कुछ सिस्टम में होता है मैडम, इसमें तो हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। बट सिस्टम में जाने के पहले तो एंट्री ह्यूमन करता है ना, वो आप उनको समझाएंगे तो आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट टाइम अगर मैं कोई एफडी की एंट्री कर रही हूँ तो मैं ही एंट्री डाल रही हूँ ना सिस्टम में, और अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें गलत डाली है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत होगा। वी हैव सीन प्रैक्टिकली सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, 13% रेट है, 3% मेंशन कर दिया है सिस्टम में। स्पेशली लोन के केस में तो बहुत ये देखने को मिलता है। So rate of interest is again important. Check and verify whether correctly entered or not. Monitoring of new opened account. First time जब account open होता है तो it is always suggest कि आप new account को at least 6 month तक monitor कीजिए अच्छे से। इन एग्जिस्टिंग अकाउंट्स, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स को आपको अच्छे से मॉनिटर करना है, बिकॉज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो सकते हैं। तो वो प्रॉपर उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उस अकाउंट में जो क्रेडिट आ रही है वो सोर्स ऑफ इनकम वही है या नहीं जो उसने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में डाला था। वो आपको करंट अकाउंट में
वी विल डिस्कस, आरबीआई ने एक नया गाइडलाइन भी इशू किया है इन द केस ऑफ करंट अकाउंट, कि आपको करंट अकाउंट ओपन करने के पहले काफी चीजें चेक करनी होती है, वेरीफाई करनी होती है, और उस फॉर्म फॉर्म में जो सोर्स ऑफ इनकम लिखा है वही सोर्स ऑफ इनकम से आपको रेवेन्यू आ रही है कि नहीं, उसमें क्रेडिट हो रही है कि नहीं। अगर कोई ट्रांजैक्शन अननेसेसरी क्रेडिट और डेबिट हो रहा है तो इट इज अ मैटर ऑफ रिपोर्टिंग एंड टू सी दैट अकाउंट क्या जेन्यून उसका ट्रांजैक्शन है या नहीं है। AML के केस में, in this provision of this act, transaction in the account should be in relation to known source of income. I explained you. Operation in the account should be allowed only as per the mandate given at the time of opening the account or as per the latest request in writing by all the depositors. अभी बैंकों ने काफी कंपलसरी किया है, इफ यू रिमेम्बर, काफी बैंक्स ने कॉल करके आपको न्यू फॉर्म्स मंगवाए थे इन द केस ऑफ इन करंट अकाउंट ऑल्सो। बिकॉज जब भी मैंने अकाउंट ओपन किया था उसमें मैंने मेरी इनकम, सपोज टर्नओवर मेंशन करना है या मेरी इनकम मेंशन करना है, सपोज मैंने मेंशन किया है 20 लाख रुपीज, और अगर उस पूरे साल में मेरा क्रेडिट सबमिशन मोर देन 20 लाख जैसे ही हो जाएगा, वो सिस्टम मुझे वहीं स्टॉप करेगा कि बैंक विल नॉट अलाउ यू टू मोर टू डू मोर ट्रांजैक्शन और मोर क्रेडिट इन दिस अकाउंट अनलेस अंटिल आप उस रिक्वेस्ट को और उस मैंडेट को चेंज नहीं करते। मैंडेट पहले भी था बट पीपल वर नॉट फॉलोइंग, नाउ आरबीआई मेड इट कंपल्सरी। और टर्म डिपॉजिट है, उसमें आप कोई भी टर्म डिपॉजिट मीन फिक्स डिपॉजिट या कुछ भी है, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आप लेते हैं बोरोअर से, जस्ट सी दैट अगर जॉइंट अकाउंट में है तो सारे डिपॉजिटर्स का उससे साइन और रिक्वेस्ट होनी चाहिए। इन द केस ऑफ क्लोजर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, any deposit account can be closed only with the written consent of all the depositor in case of joint. Premature closure of term deposit account, अगर मेरी एफडी मुझे प्री मेच्योर्ड क्लोज करनी है, ऑफ कोर्स आई एम अलाउड, मैं कर सकती हूँ, बट इन दैट केस आपको देखना है इंटरेस्ट पोर्शन जितना मुझे मिलना था उसमें से पेनल चार्जेस वगैरह रिड्यूस हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। एफडी मेरे सिंगल नाम पे थी या जॉइंट नाम पे थी, प्रोप्राइटरशिप में थी, पार्टनरशिप में थी, कंपनी में थी, किस पोजीशन में थी और मैं किस पोजीशन में उसको विड्रॉ कर रही हूँ, तो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको प्रॉपरली चेक करना होगा। The settlement of account on death of the customer, अगर किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है तो वो सारा डिपॉजिट का अमाउंट उसके नॉमिनी को जाता है, अगर नॉमिनी नहीं है तो उसके लीगल हेयर को जाता है। तो सारी फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो फॉर्मेलिटीज चेक करनी होगी। ऑल द क्लेम्स टू बी वेरीफाइड, और डेफिनेटली नो penal interest will be charged in case of premature closure on death of the customer. डिडक्शन ऑफ द टीडीएस, इवन सेविंग बैंक इंटरेस्ट मोर देन अ लिमिट है, टीडीएस आपको डिडक्ट करना है, एफडी के ऊपर भी डिडक्ट करना है, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा प्रॉपर टीडीएस टू बी डिडक्टेड और नॉट। एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सीनियर सिटीजन को हम एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट देते हैं एफडी के ऊपर या अदर डिपॉजिट के ऊपर। इवन द रूल्स इज एप्लीकेबल टू स्टाफ मेंबर्स आल्सो। So these accounts need to be checked thoroughly and very properly, because most of the time we have seen that कि अगर वो स्टाफ नहीं है उसको स्टाफ मेंबर की कैटेगरी में डाल के भी एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट सर्व किया जाता है। रिन्यूअल ऑफ ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट, the overdue term deposit can be renewed at the discretion of the bank from the date on which it has been matured. वो डिस्क्रिशनल पावर बैंक के पास है कि वो उसको रिन्यू कर सकती है। Interest will be paid at the applicable rate for the renewed period on that date. If it is not renewed within the period, interest at saving bank rate is payable for which period the deposit has been remained with the bank from the date maturity. तो इस बिटवीन के ट्रांजैक्शंस देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक और ये स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक्स वगैरह जो होते हैं उस केस में डिपॉजिटर, तो डेफिनेटली डिपॉजिटर कैन स्टॉप पेमेंट ऑफ एनी चेक issued by him before it is paid by the bank. So instruction to be given in writing and to be signed by the depositor that you have to check. Branch to give acknowledgement to the deposit
on noting the time and date of receipt and immediately update in the system. That process you should verify. In case of remittances clearing, issue of demand draft, we all know that demand draft issue किए जाते हैं, उसके केस में रिक्वेस्ट प्रॉपर फॉर्मेट में आई है फंड ट्रांसफर करने की या नहीं, वो रिक्वेस्ट आपको चेक करना है. पे ऑर्डर्स, बैंक चेक, अगेन रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर्स आप चेक कीजिए. आरटीजीएस, एनईएफटी, फंड कैन बी रेमिटेड टू थ्रू आरटीजीएस, एनईएफटी टू एनीवेयर. आईएफसी कोड इज important. करेक्ट नंबर ऑफ कस्टमर अकाउंट इज important. इनके सबके वाउचर्स बनते हैं. डेली वाउचर्स इज अ पार्ट, टेकिंग ऑफ डेली वाउचर इज अ पार्ट ऑफ कंकरेंट ऑडिटर्स जॉब. तो आपको वो सारे वाउचर्स चेक करने होते हैं. Clearing, where there are number of banks. So clearing houses is managed by one bank with the permission of RBI. So check of all the banks are exchanged and net amount is debited or credited to individual bank's account maintained at the bank managing clearing houses. So that process you need to check कि क्या follow हो रहा है. जहाँ पर ये arrangement नहीं है, वहाँ अभी भी manually होता है. But most of the we have seen clearing houses के through ही हो जाती है. Outstation checks are sent to respective branches, either through own bank branch at the center or directly to the bank through post courier. Similarly, checks are received from other banks. On receipt of proceeds from the bank, amount is credited to the customer's account. So these are outstation checks that you need to verify. In case of housekeeping, see as a concurrent auditor हमको सिर्फ यही transactions check नहीं करना है. हाउसकीपिंग, इंटरनल कंट्रोल, ये सारा चेक करने की भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसमें हम क्या चेक कर सकते हैं? नीटनेस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, कैसे रिकॉर्ड रखती है, रिकॉर्ड रूम कहाँ है, प्रॉपरली मैनेज है कि नहीं, वाउचर्स डेली बंडल होते हैं कि नहीं, डे वाइज मेंटेन होते हैं कि नहीं, प्रॉपर शेल्फ में कबर्ड में रखे जाते हैं या नहीं, सिस्टमेटिक मैनर में, फर्नीचर किस कंडीशन में है, प्रीमाइसेस किस कंडीशन में है, बोर्ड इंफॉर्मेशन बोर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं फॉर द नॉलेज ऑफ द कस्टमर, लाइक नो स्मोकिंग. इंटरेस्ट रेट का चार्ट होता है, वो बैंक में प्रॉपर प्लेस पे प्लेस होना चाहिए. सर्विस चार्जेस का बोर्ड होना चाहिए. नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द कंट्रोलर विथ फोन नंबर एंड एड्रेस ऑफ ऑफिस, ये प्रॉपर होना चाहिए. कॉशन बोर्ड्स एंड लॉकर रूम एक्सेट्रा, वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए कि दिस यू नीड टू केयरफुल और समथिंग लाइक दैट. ड्रिंकिंग वाटर का प्लेस, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ द कस्टमर. तो दीज एमिनिटीज प्रॉपरली है या नहीं है, आप इस मैटर पे भी आपकी रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं. देयर आर पॉइंट्स फॉर दैट आल्सो. आपकी रिपोर्ट में आपको यस नो में आंसर्स देने होते हैं. एंड यहाँ पे बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टेक करते हैं. हम एक फिक्स फॉर्मेट में यस 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 लिखते जाते हैं, और जब भी पता चलता है हमने डाल दिया कि यस इंटरेस्ट रेट चार्ट इज मेंशन, और बाद में पता चलता है ही नहीं. जैसे सजेशन बॉक्स, कस्टमर ग्रीवेंसेस के लिए एक बॉक्स होना चाहिए, सजेशन के लिए एक बॉक्स होना चाहिए. आपको ये बॉक्सेस बहुत कम ब्रांचेस में मिलेंगे, बट दिस मेड इट कंपल्सरी. यू नीड टू चेक एंड यू नीड टू रिपोर्ट इन योर रिपोर्ट दैट दिस इज नॉट made by the branch. So please make it available. Staff related issues also you need to verify whether staff is punctual or not. Attendance register आप चेक कीजिए, लीव रिकॉर्ड चेक कीजिए. आजकल कुछ कुछ बैंक में रिपोर्ट जनरेट होती है इससे रिलेटेड भी, बिकॉज स्टाफ जब आएगा वो अपने आईपी एड्रेस पे जब काम करता है, उसका आईपी एड्रेस जब वो लॉग इन करता है और लॉग आउट करता है, वो पूरे टाइम के साथ में रिकॉर्ड होता है. तो आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो स्टाफ ने कितनी बार आया, कितनी बार लॉग इन किया, लॉग आउट किया. ऐसा भी कई बार देखा गया है कि जैसे बैंक में बहुत केयरफुली इन सभी को एक आईपी एड्रेस पे एक पर्सन को आईडी एक्सेस दिया जाता है. कैश डिपार्टमेंट का पर्सन एफडी डिपार्टमेंट के पर्सन के पीसी से ऑपरेट नहीं कर सकता है, बट अगर उसका अकाउंट लॉगिन हुआ है दूसरे आईपी एड्रेस से, तो दिस कैन बी अ वार्निंग सिग्नल फॉर यू. Staff account. Staff members are eligible for concessional rate of interest on advances and additional rate of interest. So staff account should be checked to see whether any suspicious transactions are routed through their accounts or not.
Behavior with the customer and with other staff member is proper or not. सिक्योरिटी, ब्रांच में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो फर्स्ट आपको ये देखना है कि अगर उस ब्रांच को सिक्योरिटी गार्ड रखना कंपलसरी है तो है या नहीं, गन के साथ में है या नहीं, गन है तो उसका लाइसेंस है या नहीं, और वो सिक्योरिटी गार्ड जिसके लिए रखा गया है वो वही काम करता है या कोई उससे दूसरा काम भी कराया जाता है, डॉक्यूमेंट्स ले आओ, जेरोक्स निकाल दो, इधर ये बैठ जाओ, ये चीजें बहुत कॉमन होती है, तो अगर ऐसा है तो आपको वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। फायर एक्सटिंग्विशर्स है या नहीं है ये भी चेक करना है तो उसका एक्सपायरी डेट कभी है, रिफिल किया गया है या नहीं किया गया है, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। सिर्फ लगाने के लिए हम ब्रांच में लगा देते हैं, और ये भी केसेस हमने देखे हैं, 2-2 साल हो चुके हैं उसमें, गैस रिफिल नहीं होती है, एक्सपायर हो चुके हैं। अलार्म सिस्टम बैंक में है या नहीं और प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सीसीटीवी कैमरा वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। सीसीटीवी कौन कौन से एरिया को कवर करती है, उसमें स्टोरेज कितना है, 1 महीने का डेटा स्टोर होता है, 2 दिन का होता है या क्या है। लोन डॉक्यूमेंट्स जनरली शुड बी प्रॉपरली केप्ट इन द लॉक रूम, उसकी चाबी एक के पास है, दो के पास है, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट होता है, तो लोन डॉक्यूमेंट्स, असर्ट डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली लॉकर रूम में होने चाहिए। एएमसी ब्रांच में काफी सारी चीजें यूज होती है, यूपीएस सिस्टम, अदर इक्विपमेंट, कंप्यूटर, एसी, तो उसके लिए हम एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ताकि वो सारी कंडीशन प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में काम करती रहे। बिकॉज बैंक में शट डाउन होना, वी नो दैट अगर सिस्टम एक बार क्रैश होता है या बंद होता है तो उसको चालू करने में कितना टाइम लगता है। तो दीज आर द सिक्योरिटी मेजर्स you need to check whether branch is following properly or not. There are some licenses. आरबीआई लाइसेंस सबसे पहले तो, कि ब्रांच को वो लाइसेंस है कि नहीं वो ब्रांच ओपन करने का। रिसेंटली अभी हमने देखा, हमने सुना है कि काफी बैंकों का मर्जर हुआ है, पीएनबी में काफी सारी बैंकें मर्ज हुई है, यूनियन बैंक में काफी सारी बैंक मर्ज हुई है। अब इन दैट केस क्या हुआ है, एक बैंक को, से एग्जांपल पीएनबी में 2 बैंक जो मर्ज हुई है, एक बैंक की ब्रांच को बोला गया कि पीएनबी की ब्रांच नियर बाय है तो आप आपका सारा बिजनेस लेकर उधर शिफ्ट हो जाइए, और हाफ पोर्शन में यू कैन स्टार्ट इन द नेम ऑफ योर बैंक एंड पीएनबी साइड में रहेगी, बिकॉज वहाँ स्पेस अवेलेबल है, because they don't want to incur more cost on that because now they all are under one umbrella. तो ये हमने अभी स्टेटरी ऑडिट के केस में देखा, बट ब्रांच डोंट हैव एनी कम्युनिकेशन एक्सेप्ट द मेल। उनको एक हेड ऑफिस से मेल आ जाता है कि आपको ये ब्रांच शिफ्ट करनी है, और उस मेल के बेसिस पे उन्होंने ब्रांच शिफ्ट कर दी। दिस इज नॉट द प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर द वेरिफिकेशन पर्पज, बिकॉज डेफिनेटली अगर ये इंस्ट्रक्शन है तो हेड ऑफिस लेवल से आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुई होगी, एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, तो वो डेटा और वो आपको डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे। अगर ब्रांच का रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है या नहीं, प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, वेट एंड सिक्योरिटी, वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट में अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो प्रॉपर सर्टिफिकेट उनके पास है या नहीं है, बिकॉज ये सारे गोल्ड लोन के केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम ऑफिस अकाउंट, bank maintains various parking accounts with the permission of head office. So proper control on this account is necessary, कि वो अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन हो रही है वो आपको देखना पड़ेगा। सन्ड्री सस्पेंस अकाउंट, एडवांस अगेंस्ट एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, तो वो जनरली क्या करते हैं, उसको एक बार सस्पेंस अकाउंट में पार्क करके छोड़ देते हैं, तो उस अकाउंट में वो एंट्री प्रॉपर रिवर्स हुई है या नहीं हुई है ये आपको देखना है। एंड नॉट ओनली आउटस्टैंडिंग एंट्री बट ऑल द ट्रांजैक्शन रूटेड थ्रू दिस अकाउंट should be checked properly on a daily basis. सेम वे सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, तो पार्क द अन अकाउंट क्रेडिट, अभी अगर क्रेडिट्स आती है तो हम उसको एक बार सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट में पार्क कर देते हैं और वहां से उसको मूव करते हैं। तो इसमें एंट्रीज प्रॉपरली और विद इन द रीजनेबल टाइम फ्रेम में रिवर्स हुई है या नहीं हुई है, दैट यू नीड टू वेरीफाई। सन्ड्री रिजर्व फंड अकाउंट,
बैंक को बहुत सारी सब्सिडी रिजर्व फंड अकाउंट, तो बैंक को बहुत सारी सब्सिडीज मिलती है, जैसे एजुकेशन लोन पे सब्सिडी है, सीजीटीएमएससी स्कीम में सब्सिडीज है। तो वो सब्सिडी अमाउंट अंडर वेरियस स्कीम आर रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, तो प्रॉपर रिकॉर्ड एंड डिस्पोजल ऑफ दिस अमाउंट इज टू बी एंश्योर्ड। जब हम आज इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं, एक रेट से इंटरेस्ट कलेक्ट करके उसको डाल देते हैं, तो जब वो सब्सिडी आती है तो वो मेरे उस इनकम अकाउंट में रिवर्स होनी चाहिए या ऐड होनी चाहिए। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपर रिवर्सल एंट्री पास हुई है या नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हेड, ऑल द डेबिट टू द इनकम हेड टू बी वेरीफाइड। अगर मेरे इनकम हेड में कोई भी डेबिट एंट्री है तो वो पूरी की पूरी वेरीफाई होनी चाहिए कि मैंने रिवर्सल एंट्री क्यों मारी है इनकम हेड में। और सेम चीज विद द एक्सपेंडिचर हेड, ऑल एक्सपेंडिचर शुड बी वेरीफाइड विद द वाउचर्स, प्रॉपरली वाउचर्स के थ्रू एंट्री पास हुई है या नहीं। Some bank accounts and security and stationery accounts with other banks, जैसे मैं यूनियन बैंक की कोई ब्रांच की ऑडिट कर रही हूँ, उसका कोई अकाउंट एसबीआई की बैंक में है। तो अगर ऐसा कोई आपके ब्रांच में है और आपकी ब्रांच का अकाउंट है, तो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मंथली इंटरवल पे देखना पड़ेगा, उसके बैलेंसेस वेरीफाई करने पड़ेंगे। And if any entries are outstanding for long time, the same should be reported. And if amount is invested in any term deposit with other bank, तो उसकी इंटरेस्ट रिसीव्ड और रिसीवेबल की एंट्री मैंने पास करी है कि नहीं मेरी बैंक में, वो भी मुझे चेक करना। सेम थिंग इंटर ब्रांच अकाउंट भी होते हैं, जैसे हम अदर बैंक के साथ, अदर ब्रांच के साथ भी मेरे अकाउंट हो सकते हैं, तो दैट अकाउंट ऑल्सो टू बी वेरीफाइड। सिक्योरिटी स्टेशनरी, बैंक में चेकबुक होती है, ड्राफ्ट बुक होती है, इंटर ब्रांच एडवाइस है, लॉकर रिसीप्ट है, पे ऑर्डर्स है, ये सारे सेफ रूम में रखे जाने चाहिए। और जब भी इशू होते हैं तो उसकी प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। तो आपको ये चेक करना है कि वो प्रॉपर कंट्रोल है नहीं है, स्टेशनरी रजिस्टर्ड मेंटेन है या नहीं है, और ड्यूल कस्टडी में रखा है या नहीं रखा है। एक जन के पास में इसकी अथॉरिटी नहीं हो सकती। बैंक में सभी जगह मेकर टेकर कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी कस्टडी एक पर्सन के पास नहीं होगी। एक उस डिपार्टमेंट का हेड होगा और सेकंड पर्सन मैनेजर हो सकते हैं, या हेड टीएम डीएम जो भी उस ब्रांच की लेवल है आपकी। स्टैम्प्स ऑन हैंड होते हैं कई बार, वो स्टैम्प्स पे भी कंट्रोल होना चाहिए, उसका यूज बैंक कैसे कर रही है, इट शुड बी चेक प्रॉपरली। ऐसे ही चेकबुक, एटीएम कार्ड, पोस्टेज एंड कुरियर। चेकबुक और एटीएम कार्ड जो बैंक इशू करती है, उसमें ये देखने की आपको जरूरत है कि रिटर्न रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट ली है कि नहीं ली है ब्रांच ने। सेम विथ एटीएम कार्ड एंड पिन मेलर्स, पासवर्ड, इट शुड बी डिलीवर्ड only against acknowledgement and after proper identification of the customer. Undelivered cards and PIN to be verified. Postage registered मेंटेन है या नहीं है, उसका बैलेंस एंड स्टैम्प टू बी चेक। वो रेगुलर बेसिस पे बैंक ऑफिशियल्स रखते हैं और वेरीफाई करते हैं या नहीं, क्या प्रोसेस है उनका इसको कंट्रोल करने का। रिसिप्ट फॉर रजिस्टर्ड पोस्ट एंड बीपीज एंड वैल्यू रिसीव टू बी चेक। कुरियर, वेदर करेक्ट अमाउंट is charged as per agreement or not, whether delivery acknowledgements are given along with bills or not. कस्टमर सर्विस, हम सुनते हैं मे आई हेल्प यू काउंटर होता है बड़ी बड़ी ब्रांचेस में। So vouchers of all type to be kept at proper place for use of customer. Behavior of the staff with customer should be proper. Behavior of junior staff with superior and of superior staff with junior staff should be cordial. Time norms for various types of transactions to be displayed and to be followed. ये भी किसी किसी ब्रांच में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बिहेवियर नहीं प्रॉपर नहीं है स्टाफ का या सीनियर ऑफिशियल्स का, दैट आल्सो यू कैन रिपोर्ट इन योर मंथली रिपोर्ट। रिटर्न, पीरियोडिक सारे रिटर्न टाइम पे सबमिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये भी आपको देखना है।
15G 15H फॉर्म का सबमिशन, ये आपको चेक करना है। टैक्सेस जस्ट लाइक प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, TDS, GST, ये सब टाइम पे टैक्स भरे जा रहे हैं और इनके रिटर्न प्रॉपरली फिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लीज एग्रीमेंट, अगर आपकी ब्रांच रेंट पे है, लीज एग्रीमेंट भी आपको चेक करना है। अगर रिन्यू हुआ है, उसकी टर्म्स कंडीशन क्या है, उसके प्रॉपर इफेक्ट दिए हैं या नहीं दिए। नाउ कमिंग टू द लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस में लिस्टिंग ये है कि फर्स्ट यू नीड टू चेक इज सैंक्शन ऑफ न्यू लोन। दो टाइप के लोन्स हो सकते हैं, टर्म लोन, डिमांड लोन। फिर आपको एग्जिस्टिंग लोन पे कुछ वेरिफिकेशन करने होते हैं। फिर तीसरा लोन्स एंड एडवांसेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है असर्ट क्लासिफिकेशन। All the advances are to be classified into two categories. One is performing and the second is non-performing. We will discuss one by one this point. So the third is bank guarantee and LC. Unka issue, revoking, renewal, cancellation, all you need to check thoroughly. And कुछ cases में bank solvency certificate loans and advances case में देती है. So these are the area for loans and advances for checking purpose. Very well known terms in banking as loans and advances is, हम बैंक में लोन्स एंड एडवांसेस में क्या क्या सुनते हैं? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, पैकिंग क्रेडिट, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, एजुकेशन लोन, अदर पर्सनल लोन एंड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट, LC, BG, ये सारी टर्म्स हैं लोन्स एंड एडवांसेस में, बैंकिंग टर्म्स है जो हम सुनते हैं। अगर हम उसको फर्दर क्लासिफाई करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ लोन। फर्स्ट इज लोन फॉर पर्सनल यूज एंड वन इज लोन फॉर बिजनेस यूज। पर्सनल यूज में अगेन सिक्योर्ड होते हैं और अनसिक्योर्ड होते हैं। बिजनेस यूज में फंडेड लोन फैसिलिटी होती है, नॉन फंडेड लोन फैसिलिटी होती है, और समटाइम नॉन फंड एसेट बिकम फंडेड एसेट, ये भी चांसेस होते हैं। लोन फॉर पर्सनल यूज, हमने सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड की बात करी। तो सिक्योर्ड में कौन कौन से लोन आते हैं? हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एनी मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट। बिकॉज इनके पीछे कोई ना कोई सिक्योरिटी है, कोई ना कोई एसेट बैंक के पास रखी हुई है, इसके लिए हम उसको सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। अब सेकंड अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड क्या है? पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, पेंशन लोन, क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज हैं, और समटाइम डेबिट बैलेंस इन SB एंड करंट अकाउंट। So these are the loan for personal use. Now for business purpose. Business purpose, one is a funded facility, one is non-fund, and then non-fund assets become funded assets. अगर हम funded loan की बात करें तो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है। फिर कुछ टर्म लोन्स होते हैं, एग्रीकल्चर लोन्स होते हैं, टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट होते हैं। नॉन फंड के केस में हम बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीजें नॉन फंड के केस में आती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉन फंड एसेट्स बिकम फंडेड एसेट्स at the time of development of letter of credit or non-fulfillment of financial obligation on due date। जब कभी भी हम नॉन फंड फैसिलिटी सैंक्शन करते हैं और किसी वजह से बोरोअर उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उस केस में बैंक का ऑब्लिगेशन आ जाता है उसको फुलफिल करने का। तो उस केस में बैंक का फंड फ्लो होता है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि नॉन फंडेड एसेट्स बिकम फंडेड। So, working capital. What is working capital? A working capital loan is a loan that is taken to finance a company's everyday operation. So, these loans are not used to buy long-term assets or investments. So, sometimes a company does not have a adequate cash or cash in hand or asset liquidity to cover day-to-day operational expenses.
So on other hand, this type of loan that fund everyday business operation is called working capital facility. Generally, they cover things like payroll, rent, or debt payments. So these kind of payments generally done through the working capital facility. तो बिकॉज अगर हम बिजनेस करते हैं तो दिस इज वेरी कॉमन कि हमको फंड की जरूरत पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और मेरी परचेज करने से लगा के सेल करने तक की पोजीशन में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, और वो टाइम पे मुझे मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो बेयर करने हैं। तो जनरली बिजनेसमैन उसके लिए बैंक को अप्रोच करते हैं कि मुझे आप शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कर दीजिए। तो वर्किंग कैपिटल भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों हो सकते हैं। सिक्योर्ड जिसमें हम प्राइम सिक्योरिटी या कोलेटरल में स्टॉक या बुक डेट्स रखते हैं। जनरली वर्किंग कैपिटल स्टॉक या बुक डेट्स के बेस पे दी जाती है, टर्नओवर के बेसिस पे दी जाती है। तो उसमें अगर हमारी सिक्योरिटी स्टॉक और बुक डेट्स है तो हम उसको सिक्योर्ड की कैटेगरी में काउंट करते हैं। बट कुछ केसेस में बैंक अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी भी सैंक्शन करती है। ऐसा जनरली बहुत कम होता है, बट इन केस ऑफ हाई रेप्यूटेड क्लाइंट, वेरी रेनाउंड क्लाइंट, इस केस में और बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड और उनके साथ बैंक के क्या क्या बिजनेस रहे हैं, वो सबको देखते हुए बैंक जनरली ये सैंक्शन कर सकती है। बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्रैक्टिस। अब अगर हम ओवरड्राफ्ट की बात करें, ओवरड्राफ्ट भी वर्किंग कैपिटल के जैसे ही होता है कि जैसे मैंने वर्किंग कैपिटल 15 लाख की सैंक्शन कर दी, अब आप विद इन 15 लैक्स आप पेमेंट कर सकते हो अपने जो भी पेमेंट्स आपको करने हैं। तो सेम ओवरड्राफ्ट भी यही फैसिलिटी है, बट मेजर डिफरेंस क्या है वर्किंग कैपिटल और ओवरड्राफ्ट में? अगर सिक्योरिटी में मैंने स्टॉक के अलावा, मेरी इन्वेंट्री के अलावा अगर और कोई मेरी सिक्योरिटी है कोलेटरल या प्राइमरी में, तो दैट बिकम्स माय ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, नॉट वर्किंग कैपिटल। so in case we can assume अगर मैंने वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी सैंक्शन करी है बेस्ड ऑन रिसीवेबल, माय बुक डेट और एनी प्रॉपर्टी, तो वो मेरी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो जाती है। और वर्किंग कैपिटल एक और टर्म हम यूज करते हैं वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन एंड वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। तो वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस ये है कि बिटवीन डिफरेंस बिटवीन दिस लाइन ऑफ क्रेडिट एंड वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन इज द रीपेमेंट। वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन में आपसे कभी भी रीपेमेंट के लिए बोला जा सकता है, आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए वो दिया जाता है, एंड बैंक हैज अ राइट टू कॉल ऑफ दिस फैसिलिटी। अगर उसको लगता है कि ये फैसिलिटीज प्रॉपरली एंजॉय नहीं हो रही है या ट्रांजैक्शंस में उसको कुछ प्रॉब्लम दिखती है, तो बैंक हैज अ राइट, तो उसको हम डिमांड लोन बोलते हैं। और टर्म लोन के, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के केस में क्या होता है कि आपका एक पीरियड फिक्स होता है जो 5 इयर्स के ऊपर नहीं हो सकता। बट 5 इयर्स और बिटवीन 5 इयर्स एक पीरियड फिक्स है, तो विद इन दिस 5 इयर्स या तो उसके बाद में वो रिन्यू हो जाएगी या ईयरली होगी, जनरली ईयरली सैंक्शन होती है, तो आपको रिन्यू करनी पड़ती है। तो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन हम उसको बोलते हैं। और जनरली ऐसा हम बहुत बड़े लोन के केसेस में देखने को मिलता है। मोर देन 10 करोड़ अगर लोन सैंक्शन होते हैं, तो वहां पर बैंक उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन और एक वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। अगर हम एग्जांपल लेवे कि 20 करोड़ का लोन वर्किंग कैपिटल सैंक्शन कर रही है, तो 20 करोड़ में से वो 16 करोड़ डिमांड लोन में डाल देगी और 4 करोड़ का टर्म लोन में डाल देगी। और कई बार टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन रीशेड्यूलिंग के केस में भी होता है। रीशेड्यूलिंग कब होती है? अगर मैंने ऑलरेडी किसी बैंक ने बोरोअर को वर्किंग कैपिटल सैंक्शन करी हुई है और वो अकाउंट प्रॉपर नहीं जा रहा है या वो अपनी ईएमआई प्रॉपर नहीं भर पा रहा है ड्यू टू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन, और वो बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बिजनेस में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड और सम 5-6 महीने ये रूटीन हो जाएगा,
तो आप इसको, तो वो अकाउंट एनपीए में जाने से बचाने के लिए उस अकाउंट की रीशेड्यूलिंग होती है। रीशेड्यूलिंग इज ऑल्सो अलाउड, रीस्ट्रक्चर भी अकाउंट होते हैं आरबीआई में, देयर इज अ प्रोविजन फॉर दैट। in that case you need to that provision, you need to see the that provision also कि वो रीस्ट्रक्चरिंग और रीशेड्यूलिंग प्रॉपर सिस्टम फॉलो करके हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो रीशेड्यूलिंग के केस में जितना भी मेरा इंटरेस्ट ड्यू है अभी तक जो मैंने नहीं भरा है, वो मेरा फंडेड कैपेसिटी, फंडेड फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक और टर्म यूज होती है, बिल परचेज, बिल डिस्काउंटिंग एंड बिल अकोमोडेशन। बिल परचेज क्या है, डिस्काउंट क्या है? से एग्जांपल, इफ कस्टमर इज अ गुड सप्लायर, उसने बिल रेज कर दी है, गुड्स ऑलरेडी उसने मूव कर दिए, सेल हो गई है उसकी, लेकिन उसको पेमेंट आने में टाइम लगने वाला है। बट पेमेंट उनकी पॉलिसी है भाई 30 दिन में आएगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में पेमेंट आ जाने वाली है। बट मुझे अगर अभी फंड की जरूरत है तो मैं किधर जाऊंगी? मैं बैंक में जाती हूँ और बैंक को बोलती हूँ कि आप मुझे, मेरा ये सेल का रिसीट आने वाला है, आप मुझे लोन सैंक्शन कर दीजिए। तो बैंक बोलेगा मुझे क्या गारंटी है कि वो सेलर आपको पेमेंट दे देगा। तो नाउ आई गो टू माय सेलर, मैंने जिसको मटेरियल सेल किया है, गुड सेल किया है, कि आई विल ड्रॉ अ बिल, यू प्लीज एक्सेप्ट दैट। तो इट्स काइंड ऑफ जस्ट लाइक अ गारंटी हो गई। उसने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं आपको 30 दिन के बाद या 45 दिन के बाद में ये पेमेंट कर दूंगा। अब वो एक्सेप्टेंस के बाद में वो बिल लेकर बोरोवर जाता है बैंक के पास में, और बैंक को बोलता है कि दिस इज माय बिल, आई हैव ड्रॉन इन फेवर ऑफ यू, आपके पास रखिए, मेरे को 45 दिन में इसका पेमेंट आ जाएगा। तो ऑन दैट बेसिस आप मुझे आज फंड दे दीजिए क्योंकि मुझे आज जरूरत है। तो इसको बोलते हैं हम बिल परचेजिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग। बट एक वर्ड होता है बिल अकोमोडेशन। तो इस एग्जाम्पल में हमने जो डिस्कस किया वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो अगर मुझे फंड की जरूरत है, ऐसा देखा गया है कई बार कि मुझे फंड की जरूरत है, अगर बैंक से मुझे फंड चाहिए तो या तो मुझे बिल प्रेजेंट करना है, लेकिन मेरे पास में ऐसे कोई बिल है नहीं जिन एक्चुअली प्रैक्टिकली। तो मैं क्या करूंगी, मेरे फ्रेंड को के पास जाऊंगी, उसके पास मैं वो, या मेरे रिलेटिव के पास जाती हूँ, उनको मैं बोलती हूँ कि मैं एक बिल ड्रॉ करती हूँ आपके नाम पे, आप उसको एक्सेप्ट कर लो और गारंटी सॉर्ट ऑफ एक वो बिल ड्रॉ कर दो। उसको लेकर मैं बैंक के पास जाती हूँ और फंड रेज करती हूँ। तो दिस इज कॉल्ड, दिस ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अगर मैं, ये एक्टिविटीज है तो इसको हम बिल्स अकोमोडेशन बोलते हैं। और ऐसा अगर आपकी ब्रांच में होता है तो एज अ कॉन्करेंट ऑडिटर यू हैव टू रिपोर्ट इट। बिल्स अकोमोडेशन का सारा डिटेल्स आपको रिपोर्ट करना है। बिल परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग हमको ओवरसीज ट्रांजैक्शन के केस में भी देखने को मिलती है। वहां पर आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट है देखना कि जब फॉरेन करेंसी के जो ट्रांजैक्शन है, जो रेट डिफरेंस, जब मैंने बिल इशू किया, रेज किया, और जब भी मैंने एग्जीक्यूट किया, उसके बीच का जो भी रेट डिफरेंस है, या तो बैंक उसको एब्जॉर्ब करेगी या कस्टमर से चार्ज करेगी। तो वो आपको देखना है कि बैंक ने ये फॉलो किया है कि नहीं किया है। अब एक और चीज होती है पैकिंग क्रेडिट। सॉरी। So these are the type of working capital which I am explaining you. One is the open cash credit, overdraft, working capital demand loan, term loan, purchase and bill discounting, and now it is a packing credit. Packing credit is like another type of working capital, and it is intended for export. When I say export, means it is direct, it includes direct export, export houses, and export zone is allowed. Even सब सप्लायर ऑफ एक्सपोर्टर, जो फर्स्ट लाइन एक्सपोर्ट हम जिसको बोलते हैं, वो भी पैकिंग क्रेडिट के लिए एलिजिबल होते हैं।
जनरली पैकिंग क्रेडिट में लोग इसलिए जाते हैं बिकॉज इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है। बिकॉज मैं अदरवाइज सीसी के लिए भी जा सकती हूँ, बट मैं क्यों जाऊंगी अगर मेरा एक्सपोर्ट है। गवर्नमेंट wants टू प्रमोट द एक्सपोर्ट, दैट्स द रीजन उन्होंने इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखी है। तो इसके लिए पीपल गो फॉर द पैकिंग क्रेडिट। पैकिंग क्रेडिट में अगेन दो टाइप होते हैं, वन इज अ प्री शिपमेंट एंड नेक्स्ट इज द पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट क्या है कि मुझे आज ऑर्डर मिला, अब मुझे उसको प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोसेसिंग के लिए खर्चे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए खर्चे होंगे, तो उसके लिए मुझे फंड चाहिए। तो मैं उसके बेसिस पे प्री शिपमेंट के लिए पैकिंग क्रेडिट यूज करती हूँ। और एक होता है पोस्ट शिपमेंट, मेरा पूरा प्रोडक्ट रेडी है, तब मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट किया, मेरी कैपिटल डाल के प्रोडक्ट को रेडी कर दिया और उसको शिपमेंट में डाल दिया। बट शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग के बेस पे मैं पैकिंग क्रेडिट ले सकती हूँ। वो मुझे क्यों चाहिए कि मेरा माल वहां पर जाएगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, उसके बाद मेरे अकाउंट में वो पैसा आएगा। उस ड्यूरिंग द पीरियड हो सकता है मुझे फंड की जरूरत है, तो ऑन दैट बेसिस भी मैं बैंक में जा सकती हूँ। पैकिंग क्रेडिट डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग पोस्ट शिपमेंट और प्री शिपमेंट के केस में ये पैकिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन ज्यादा देखने को मिलते हैं। नाउ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, कैसे हम लोग वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी देते हैं। उसके लिए देर आर थ्री मेथड, वन इज अ टर्नओवर बेस्ड मेथड, second is maximum permissible bank finance method assessment and projected cash flow assessment। तो आपको पहले ये देखना है कि बैंक कौन सी मेथड फॉलो कर रही है उसका असेसमेंट करने के लिए। ये क्यों करना है, ये असेसमेंट है बोरोअर का कि वेदर द बोरोअर इज एलिजिबल फॉर दिस वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी और नॉट। तो वो आपको यहाँ पे इस मेथड के थ्रू चेक करना होता है। तो फॉर टर्म लोन feasibility of the project in case of new project loan check करना is most important। assessment of future expansion in case of existing project again it is really important। कि हम ये जो बात कर रहे हैं ना चेक करने की, ये बोलना बहुत आसान है बट प्रैक्टिकली ये चेक करना इट्स रियली पेनफुल जॉब, but with the little smartness you can do that। अब वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी और ये जो टर्नओवर मेथड और मैक्सिमम परमिटेबल मेथड है, हम वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी क्या बेसिस पे दे रहे हैं, स्टॉक के बेसिस पे, बुक डेट के बेसिस पे। तो मुझे उसकी डीपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। व्हाट इज डीपी, डीपी इज ड्राइंग पावर। तो उस ड्राइंग पावर के ऊपर आप उस बोरोअर को वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी नहीं दे सकते। तो डीपी इज वेरी क्रूशियल और इट शुड बी कैलकुलेटेड एंड चेक्ड मंथली। इसलिए हम बोरोअर को स्टॉक स्टेटमेंट मंथली सबमिशन के लिए बोलते हैं। उसका स्टॉक स्टेटमेंट आने के बाद आपको सिर्फ यही नहीं देखना है कि whether stock statement has been received or not, you have to analyze उसकी वर्किंग कैपिटल के लिए वो एलिजिबल है या नहीं इस नेक्स्ट मंथ में भी, या पता चला कि नेक्स्ट मंथ में उसकी नेगेटिव डीपी हो गई है। तो अब नेगेटिव डीपी कब होती है कि फर्स्ट तो ड्राइंग पावर स्टेटमेंट के लिए आई एम जस्ट शोइंग यू द कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट इज स्टॉक वैल्यू एज ऑन, जहां पर मेरा ग्रॉस स्टॉक है, मैंने ग्रॉस स्टॉक ले लिया। उसके बाद मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स और एलसी क्रेडिटर्स को माइनस किया। अच्छा, एक मेथड ये होता है जब हम वर्किंग कैपिटल एलिजिबिलिटी निकाल रहे हैं, तब बहुत सारी बैंक ये मेथड फॉलो करती है कि जब उस टाइम पे मैंने जितने क्रेडिटर्स माइनस कर दिए थे उसको मैं वापस अभी माइनस नहीं करूंगी। फॉर एग्जाम्पल वो टाइम पे मेरे क्रेडिटर्स थे 20 करोड़, तो मैंने 20 करोड़ को लेकर ही मेरी वर्किंग कैपिटल की एलिजिबिलिटी निकाली है। तो अगर इस मंथ में मेरे क्रेडिटर्स 25 करोड़ हो जाते हैं तो मुझे एक्स्ट्रा सिर्फ 5 करोड़ ही यहाँ पे माइनस करना है, ना कि 25 करोड़, बिकॉज 20 करोड़ का ऑलरेडी मैंने असेसमेंट कर लिया है। बट दिस इज आई मीन बैंक टू बैंक इट डिफर्स।
बहुत से लोग ये मेथड फॉलो करते हैं और बहुत सारी बैंक नॉर्मल ग्रॉस क्रेडिटर्स को वहां पर माइनस करती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बैंक कौन सा मेथड फॉलो कर रही है। आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका पेड स्टॉक आ जाता है। अब उसमें मैंने एक मार्जिन रख के ही मैंने वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी उसको दी है, वो मार्जिन मुझे उस स्टॉक पे माइनस करना पड़ेगा। तो अब मेरा ड्रॉइंग पावर ऑन स्टॉक आ जाता है कि मुझे उस स्टॉक पे कितना डीपी अवेलेबल है एज अ बोरोवर। नाउ कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेबल बुक डेट। मेरे बुक्स में कितने बुक डेट्स है वो मैंने यहाँ पे लिखी है जो रियलाइजेबल है। हम बेड डेट्स और वो सब बात नहीं कर रहे हैं। मेरे रियलाइजेबल बुक डेट्स मैंने लिख लिए। उसमें से मेरे कुछ बुक डेट्स ऐसे जो कि एलिजिबल नहीं है डीपी के लिए। वो बहुत सारे हो सकते हैं जो मेरे डेटा लॉन्ग टर्म है, या जो मैंने डीपी कैलकुलेशन के लाइन पे नहीं लिए, या जो मेरे बिजनेस के नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं। वो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी। अब मेरे एलिजिबल बुक डेट्स आ जाते हैं, उसमें मैंने मार्जिन माइनस कर दिया। तो अब मेरे ड्रॉइंग पावर ऑन बुक डेट्स आ गई। तो मेरी कंबाइंड डीपी ए प्लस बी, तो टोटल मेरी कंबाइंड डीपी आ गई। और ये इसके ऊपर मेरा वर्किंग फैसिलिटी का बैलेंस नहीं जाना चाहिए। एवरी मंथ यू नीड टू चेक, यू नीड टू वेरीफाई दिस, बिकॉज इन कैश क्रेडिट अकाउंट ये बहुत सारी एरर्स देखने को मिलती है। इवन हमने स्टेट्यूटरी ऑडिट के टाइम पे ये सारी मिस्टेक्स निकाली है, जबकि ये पोर्शन कॉन्करेंट ऑडिट के टाइम पे ही निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट मंथ उसको डीपी अवेलेबल होनी ही नहीं चाहिए अगर वो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। तो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल यू आर डूइंग अ कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ एनी ब्रांचेस। तो यहाँ हमने बात करी कैलकुलेशन ऑफ डीपी की। डीपी कैलकुलेशन में अभी एक चीज हो सकती है, एक और पॉइंट है कि जो मैंने बात करी आपको इसमें कि ये मेरा स्टॉक और क्रेडिटर्स माइनस करने के बाद जो आएगा जनरली ये पॉजिटिव होता है। बट कभी अगर ये नेगेटिव आ जाए तब क्या करना है? क्या हम उसको वो फैसिलिटी एंजॉय करने देंगे आगे भी? दिस कैन बी पॉइंट फॉर द डिस्कशन। नेगेटिव डीपी का क्या मतलब है? नेगेटिव डीपी मतलब मैंने जो मेरा ग्रॉस स्टॉक है वो मेरा कम है और मेरे जो क्रेडिटर्स हैं वो ज्यादा। इसका क्या मतलब होता है? मैंने परचेस किया है, गुड्स परचेस किए हैं, और उसको मैंने बहुत जल्दी ही सेल्स में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब मेरी इन्वेंट्री जो है वो रिसीवेबल में कन्वर्ट हो चुकी है, और इसलिए मुझे स्टॉक कम मिल रहा है। तो अगर ऐसा है तो डू यू फील कि मेरे को वर्किंग कैपिटल की जरूरत है? से एग्जाम्पल, एक सप्लायर है मेरा जिसको 1 मंथ का क्रेडिट है, मैंने गुड्स परचेस किए, मुझे उसको 1 महीने में पैसा देना, करेक्ट? अब यहाँ पर अगर स्टॉक मेरा कम हो जाता है इस कैलकुलेशन के हिसाब से, इसका मतलब है कि मेरा स्टॉक कम है, मतलब वो स्टॉक जो परचेस का स्टॉक था उतना भी नहीं है। तो वो क्या हो गया है, मेरे सेल में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने उसको इन्वेंट्री को रिसीवेबल में कन्वर्ट कर दिया, मे बी मोर देन अर्लियर देन 1 मंथ, क्योंकि 1 मंथ में तो मुझे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था, उसके पहले ही मेरे डेटर्स बन गए हैं वो। तो उस केस में मुझे फंड की कहाँ जरूरत है? दिस कैन बी अ क्वेश्चन फॉर अस। अब या तो जब वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी सैंक्शन किया था वो ऑफिसर के पास में पूरे फैक्ट नहीं थे, इसलिए हमने उसको वर्किंग कैपिटल सैंक्शन कर दी है, या फिर मिस्टेक है, प्रॉपर नहीं हुई है। सो दैट यू नीड टू वेरीफाई वेरी केयरफुली कि उसने रॉन्गली किया है या इंटेंशनली किया है। वो आपको रेक्टिफाई कराना पड़ेगा, एंड दिस नीड टू बी वेरीफाई मंथ ऑन मंथ बेसिस इन केस ऑफ कैश क्रेडिट एंड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी। अच्छा, डीपी नेगेटिव होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको सीधा ही बोलो कि वर्किंग कैपिटल के लिए तुम एलिजिबल नहीं हो। एक केस और हो सकता है डीपी नेगेटिव होने का।
अगर मेरे गोडाउन में आग लग जाती है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, कोई ऐसी चीज रॉबरी हो जाती है, चोरी हो जाती है, मटेरियल वेस्ट हो गया, एब्सोल्यूट स्टॉक हो गया, ऑल ऑफ सडन मुझे फेंकना पड़ गया, अगर ऐसी कोई कंडीशन है और उसकी वजह से मेरी डीपी नेगेटिव जाती है, तो वहां आप उसकी वर्किंग कैपिटल को स्टॉप नहीं कर सकते। तो इन केस ऑफ नेगेटिव डीपी, फर्स्ट एनालाइज दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, एंड देन आप कोई भी कंक्लूजन पे आइए। अच्छा, इश्यूज ऑन द केस ऑफ ड्राइंग पावर, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलसी आउटस्टैंडिंग। एज आई मेंशनड यू कि अगर क्रेडिटर्स कोई बैंक में पहले माइनस कर देते हैं तो अगेन नहीं करते हैं, so that treatment you need to check. Items to be considered while arriving monthly DP. I explained you monthly you have to see that आपको डीपी कैलकुलेट करना है, उसमें क्या क्या आइटम्स चेक करनी है, आपको क्या कंसिडर करनी है, क्या नहीं करनी। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे रियलाइजेबल बुक डेट, ये बोलना आसान है बट कैलकुलेट करना अगेन इट इज डिफिकल्ट, बट यू नीड टू सी दैट। इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव डीपी ऑन स्टॉक, I explained you how we and how we should analyze. Ascertaining eligible receivable. एलिजिबल, अगेन आई एक्सप्लेन यू कि मेरे एलिजिबल कितने हैं, अनएलिजिबल कितने हैं रिसीवेबल। ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टर कंसर्न ड्यू रिफ्लेक्टिंग इन बुक डेट। अच्छा, कोई ऐसी भी तो मेरी होती है परचेज सेल जो मेरे सिस्टर कंसर्न को है, मेरी ग्रुप कंपनी को है, तो उनसे अगर ड्यूज है वो उसको मुझे कैसे डील करना है, कितने जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, उसका ट्रीटमेंट भी आपको देखना पड़ेगा। और मैंने कोई एडवांसेस टू सप्लायर और फ्रॉम कस्टमर्स है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि वो मेरे बुक डेट का पार्ट है या नहीं है। तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू सी बिफोर कैलकुलेटिंग द डीपी। Now bank guarantee, one more this is a non fund facility which is provided by the bank, is bank guarantee and letter of credit. जब भी हम बैंक गारंटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है फाइनेंशियल बैंक गारंटी। इसमें बैंक को एक्चुअली में मनी पे करनी होती है एट द टाइम ऑफ अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जस्ट लाइक अ परचेजर एंड सेलर। मैंने कोई गुड्स परचेज करना है, मेरे पास अभी पैसे नहीं, मैंने बैंक को गारंटी दे दी पर्टिकुलर पीरियड की कि इस पीरियड में आपको पैसा, लेट्स अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि मैंने परचेज किया, मेरे पास में आज पैसा नहीं है पैसा देने के लिए, मैंने बैंक को रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे बिहाफ पे उसको गारंटी दे दो, और बैंक ने गारंटी इशू की कि अगर ये बोरोअर पे नहीं करेंगे तो हम पे करेंगे, और उस गारंटी के बेस पे मुझे उन्होंने गुड्स प्रोवाइड किया। और अगर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और गारंटी खत्म होने के टाइम पे अगर बोरोअर पे नहीं करता है, तो दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑन द बैंक, उसको पे करना पड़ेगा। तो हियर फाइनेंशियल टर्म्स आर इन्वॉल्व। एक और होता है परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी के केस में क्या होता है, परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करना होता है आपको। परफॉर्मेंस जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जनरली हम ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलती है कि आप हमको परफॉर्मेंस गारंटी प्रोवाइड करवाइए इतने अमाउंट की, तभी हम आपको कॉन्ट्रैक्ट इशू करेंगे। अब बेस्ड ऑन प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ दैट बोरोअर और उसके अकाउंट को पोजीशन देखते हुए बैंक परफॉर्मेंस गारंटी इशू करती है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसका जो भी लॉस उस क्लॉज में लिखा है दैट वो बैंक को बेयर करना पड़ता है। तो दिस इज अ परफॉर्मेंस गारंटी। एक होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होती है टू प्रोसीड रॉ मटेरियल टू परचेज और इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी। Bank guarantee and letter of credit is similar in that they both instill confidence in the transaction and participating parties. However, the main difference is that letter of credit ensure that the transaction goes ahead
or whenever where is a bank guarantee reduce any loss incurred if the transaction does not go to the plan. तो एलसी में क्या है कि आपको एक्चुअल में देना ही है जब ये एलसी कंप्लीट होती है, बट बैंक गारंटी के केस में अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपको पे करना है, आपको मींस बैंक को. So this is the major difference between bank guarantee and letter of credit. इन केस ऑफ बैंक गारंटी आरबीआई का एक सर्कुलर है जो उन्होंने अपनी रिवाइज गाइडलाइन में जुलाई 2015 में इशू किया था. So at the time of issue of financial bank guarantees, bank should be satisfied that the customer would be in a position to reimburse the bank in case the bank is required to make payment under the guarantee. Definitely yes, because आपको उसका ट्रांजैक्शंस देखना है, अकाउंट देखना है, आप सेटिस्फाइड होने चाहिए कि बोरोअर वो पे करने की पोजीशन में है. In case of performance guarantee, bank should exercise due caution and have sufficient experience, capacity, and means to perform the obligation under the contract. Generally, banks have refrained from issuing guarantee on behalf of customers who don't enjoy credit facility with them. अगर आपका कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी का अकाउंट ही नहीं है उस बैंक में, तो बैंक आपका परफॉर्मेंस और आपके पास्ट एक्सपीरियंस नहीं असेस कर सकती है, इसलिए बैंक उस केस में आपको वो गारंटी इशू नहीं करेगी. वन इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट is an agreement to exchange one currency for another currency on a specific date in future at a predetermined exchange rate set at the time of contract is made. तो बैंक ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है. हम सुनते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, डेरिवेटिव. तो दीज काइंड ऑफ अरेंजमेंट भी बैंक के साथ में होते हैं. अब मुझे अगर पता है कि मुझे 2 महीने के बाद में मुझे इतने यूएस डॉलर का पेमेंट करना है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो टाइम पे यूएस की रेट डॉलर की रेट क्या होगी, तो मैंने आज ही उस डेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बुक किया बैंक के साथ कि मुझे इतना यूएस डॉलर से एग्जांपल 3000 यूएस डॉलर का मुझे पेमेंट करना है. तो मैंने बैंक के साथ में 3000 यूएस डॉलर का अग्रीमेंट साइन किया कि उस डेट पे, आज की जो डेट है उस रेट पे आप मुझे उतनी करेंसी देंगे या मेरे बिहाफ पे करेंगे. So in these type of contract, what you need to check is कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और एक्चुअल में जब वो एग्जीक्यूट हुआ, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के बीच में अगर कोई करेंसी डिफरेंस है तो वो करेंसी डिफरेंसेस आइदर वो कस्टमर पे लोड किया है उन्होंने या नहीं किया है, उसके चार्जेस प्रॉपर्ली है लिए हैं या नहीं लिए. नाउ हाउ टू ऑडिट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस. लोन्स एंड एडवांसेस हमने अभी तक सारी टर्म्स डिस्कस की कि आई एम नॉट पुटिंग मच टाइम ऑन हाउसिंग लोन एंड व्हीकल लोन बिकॉज दीज लोन generally it's a very easy process. Why I am putting much efforts on working capital cash credit because these are the gray areas जहाँ पर concurrent auditors को काम करने के लिए बहुत जगह मिलती है और करना चाहिए. अगर हम ऑडिट ऑफ एडवांसेस की बात करते हैं तो ये तो ठीक है, प्रोसेसेस है जो मैंने पूरे इसमें विदड्रॉ किए हैं, बट अगर प्रैक्टिकली हम बोलते हैं तो हमारा फर्स्ट चेक क्या होता है लोन्स एंड एडवांसेस के केस में. माय फर्स्ट चेक इज व्हाटएवर सबमिशन फ्रॉम द क्लाइंट, वो क्या है मैं देख. अगर कोई बोरोअर बैंक के पास आता है लोन के लिए तो वो एक लेटर लेके आएगा, अपना बैंक अप्रेजल फॉर्म लेके आएगा, प्रपोजल लेके आएगा, एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म लेके आएगा और अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्यूचर प्रोजेक्शन, सीएमए डेटा, उसका ओवरऑल कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है, एक्सपीरियंस क्या है उसका, उसकी टीम में क्या-क्या लोग हैं, वो कैसे परफॉर्म करेगा फ्यूचर में, ये सारी चीजें लेके वो आता है. तो फर्स्ट चेक पॉइंट इज यू नीड टू सी दैट कि बोरोअर ने क्या-क्या सबमिट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड और नॉट. देन द सेकंड चेक इज बैंक विल प्रिपेयर अप्रेजल लेटर. ठीक है, बैंक ने पूरा अप्रेजल लेटर बनाया, सारे चेक हुए, वो क्या करेगा
फर्स्ट कैसे बनेगा अप्रेजल लेटर? फर्स्ट बैंक नीड टू डाउनलोड द सिविल रिपोर्ट। बैंक ने सिविल रिपोर्ट डाउनलोड करी कि नहीं करी वो आपको देखना है। उसमें स्कोरिंग क्या थी, इस स्कोरिंग इज सफिशिएंट कि उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाने के लिए वो प्रॉपर है या नहीं, वो आप चेक कर लीजिए। बिकॉज दिस सिविल स्कोरिंग प्ले अ रियली वाइटल रोल टू डिटरमाइन द पर्सन एलिजिबिलिटी। लोन रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन वो कैसे करने वाला है, उसका इनकम सोर्स क्या है, एनुअल इनकम क्या है, हम बैंक वो असेस करेगा। तो उसका क्या प्रोसेस बैंक ने फॉलो किया है, ये आपको चेक करना है। वेदर उस लोन से रिलेटेड कोई सिक्योरिटी है, नहीं है, कोलेट्रल है, प्राइमरी है, प्रॉपर असेस की है या नहीं की है। डेलीगेशन मैट्रिक, हम ये सब में एक चीज भूल जाते हैं कि लोन जो सैंक्शन हुआ है वो कहाँ से हुआ है। अगर आपके ब्रांच से हुआ है तो ब्रांच मैनेजर के पावर में था क्या वो लोन को सैंक्शन करना। और अगर वहां से नहीं हुआ है तो जोनल से, सर्कल से या आरओ से हुआ है, तो उनकी डेलीगेशन मैट्रिक्स क्या थी, उनकी अथॉरिटी क्या थी। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि उनके पावर में है या नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट सिक्योरिटीज एज पर द सैंक्शन टर्म्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं, वो आपको देखना है। डॉक्यूमेंट्री मैनुअल अवेलेबल और नॉट, ये आपको बैंक में देखना पड़ेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो एज पर मैनुअल है कि नहीं, तो उसके लिए मैनुअल होना चाहिए, तो वो मैनुअल आप चेक कीजिए। आजकल क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री टेम्पलेट जनरली यूज करते हैं। टेम्पलेट उठाया, कॉपी पेस्ट किया और उसमें जहां जहां चेंजेस थे मैंने वो चेंजेस कर दिए। बट ऑल द borrowers एंड ऑल द फैसिलिटीज आर नॉट सेम। तो आपको वो डिटेल में पढ़ के देखना पड़ेगा कि वेदर दे हैव टेम्पलेट के थ्रू उठा के उन्होंने प्रॉपर उसमें चेंजेस किए हैं कि नहीं किए हैं, एंड ऑल द सैंक्शन टर्म्स हैज बीन फुलफिल्ड और नॉट। साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगेन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वो डॉक्यूमेंट्स पे बोरोअर के साइन है, एक सिग्नेचर हो जाता है और हम बोलते हैं ओके हो गया। बट इन व्हाट कैपेसिटी, इन विच कैपेसिटी पीपल आर साइनिंग, यू जस्ट सी दैट उसकी डेजिग्नेशन भी उसमें होनी चाहिए। इफ ही इज अ प्रोपराइटर तो ही साइनिंग इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोपराइटर, और ही साइनिंग इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर, डायरेक्टर या authorized representative. So that designation also should be mentioned in that document. डॉक्यूमेंट ड्यूली साइंड है या नहीं, और जो भी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है उसकी सील है या नहीं है। और इन द केस ऑफ कंपनी द चार्ज क्रिएशन विद आरओसी बोर्ड रिजोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट। उसका कॉपी आप लो, जो पर्सन आया है लोन के लिए वो ऑथोराइज्ड है या नहीं, प्रॉपरली रिजोल्यूशन के थ्रू उसको अथॉरिटी मिला है कि नहीं मिला है, तो दैट डेटा बैंकिंग सिस्टम में प्रॉपरली एंटर हुआ है कि नहीं हुआ है। और मॉर्गेजेस के केस में आई जस्ट वुड लाइक टू हाईलाइट हियर सम रजिस्टर्ड मॉर्गेज एंड ईएम, इक्विटेबल मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्या होता है कि जो भी आपने लोन लिया है, कोई प्रॉपर्टी के ऊपर लिया है, जैसे हाउसिंग लोन की हम बात करें तो उसमें प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये मुझे क्या गारंटी है कि वो पर्सन जो मेरे पास में डॉक्यूमेंट लेके आया है वो किसी और बैंक के पास में नहीं गया। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो मॉर्गेज रजिस्टर्ड होना चाहिए विद द रजिस्ट्रार, विच इज द सेफेस्ट मोड। बट इसकी स्टैम्प ड्यूटी फीस एंड चार्जेस आर वेरी हाई, इसके लिए लोग प्रेफर नहीं करते हैं। और उसके लिए वो क्या करते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज करते हैं। इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है, एक ईएम रजिस्टर्ड होता है बैंक में, उसमें उस हम पूरी डिटेल्स मेंशन करते हैं, प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ द डिटेल्स ऑफ द बोरोअर, डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, वो सब मेंशन करके स्टैंपिंग करके वहां पर हम उसको ईएम कर देते हैं। बट दिस इज नॉट द सेफेस्ट वे। ये सब बहुत अच्छे से चल रहा था, कब तक, जब तक कि ज्यादा फ्रॉड नहीं आए थे। वो फ्रॉड कैसे पिक्चर्स में आए, जब ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स था तब तक तो इतना प्रॉब्लम नहीं था। जब कलर जेरोक्स आ गया, जैसे मैंने एक बोरो, ये केसेस हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। आई डोंट वांट टू टेक अ नेम ऑफ द बैंक, बट वी हैव ऑब्जर्व दैट वन borrower has come to the bank, उसने अपने हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई किया, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सबमिट किए,
एक महीना लोन सैंक्शन में हो गया, सेकेंड मंथ वो दूसरे बैंक में गया, उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उसने क्या किया, वो डॉक्यूमेंट के आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट बनाए कलर जेरोक्स, और नेक्स्ट बैंक में गया, वहां से लोन ली, फिर थर्ड बैंक में गया और वहां से लोन ली। ये सब बहुत अच्छे से चल रहा था टिल 7-8 मंथ, जब तक कि ईएमआई प्रॉपर जा रही। वन फाइन डे बोरोहर हैज स्टॉप पेइंग ईएमआई। 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, बाद में बैंक ने जब सरफेसाई नोटिस इशू किया, जब उसके ऊपर चार्ज लेने की बात आई, तब पता चला कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक नहीं 3 बैंक का चार्ज। अब इस सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी किस बैंक के चार्ज में जाएगी? तो ऐसे केसेस में इक्विटेबल मोर्गेज बहुत रिस्की हो जाता है। तो उस केस में एक बैंक ने अपना चार्ज रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड करवाया था, इसलिए थर्ड बैंक, दो द लोन हैज बीन सैंक्शन लेटर स्टेज, बट जब फर्स्ट जिसने लोन सैंक्शन किया उस बैंक को वो राइट नहीं है, बिकॉज उसने मोर्गेज रजिस्टर्ड नहीं किया है। तो जब ये सब सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए एक मेथड इन्होंने नया निकाला, विच वाज मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ ऑल टाइटल डीड। अब वो क्या करते हैं, ईएम क्रिएट किया और हमने उसकी टाइटल डीड का एक मेमोरेंडम बना दिया, जिसके ऊपर बोरोवर का, बैंक का, सबका साइन होता है। अब हम उसको लेके सेंट्रल रजिस्ट्री में जाते हैं, रजिस्ट्री के पास जाते हैं और हम उसको रजिस्टर्ड कर देते हैं। उसमें चार्जेस भी कम हो जाते हैं और आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड मोर्गेज भी रजिस्टर्ड हो जाता है। अब उस केस में क्या होगा, जब एक बार वो रजिस्ट्री में चढ़ जाता है, अब अगर बोरोवर दूसरे बैंक के पास जाएगा तो ये उसको कंपलसरी है कि फर्स्ट यू नीड टू सी दैट उस प्रॉपर्टी के ऊपर उस रजिस्ट्रार में कोई और चार्ज तो क्रिएट नहीं है। अब वो जैसे ही देखेगा कि ऑलरेडी ये किसी और बैंक में चार्ज क्रिएट किया हुआ है, तो वो उसको वो लोन सैंक्शन नहीं करेगा। बट द सीन इज, ये रजिस्ट्रार ऑफिस स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं, तो सारे स्टेट इस पर अभी तक एग्री नहीं है। मोस्ट ऑफ स्टेट हैज they are following this process to overcome the challenges of EM. Now, further checkpoint in loans and advances is registration with CERSAI. बैंक ने लोन इशू किया है, तो एज पर directives issued by the government, all lenders means bank, financial institutions, are required to register any and all the information with their side with regard to security interest that they have been created. Registration must be completed within a 30 days of creation of security interest. तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि विद इन द 30 डेज आपको सरसाई में रजिस्ट्रेशन करना है। आप 30 डेज में नहीं भी करते हैं तो 60 डेज में लेट फीस के साथ कर सकते हैं। 60 डेज के बाद भी नहीं करते हो तो फिर आप नहीं कर सकते। उसके बाद अगर करना है तो आपको जेन्युइन रीजन देने पड़ेंगे, कंडोनेशन ऑफ डिले, सारी चीजें देने के बाद आप कर सकते हो। बट वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? अगर आपने सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो योर मोर्गेज एंड फैसिलिटी बिकम नल एंड वॉइड। और ये कब काम आता है कि अभी जब तक मेरा लोन मेरी अकाउंट अच्छा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब आती है जब अकाउंट एनपीए होता है और बैंक को सरफेसाई नोटिस इशू करना है। सरफेसाई आप तब तक इशू नहीं कर सकते जब तक कि आपका सरसाई में रजिस्ट्रेशन नहीं है। So that's the reason आपको ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक हैज गॉन फॉर द सरसाई रजिस्ट्रेशन और नॉट, बिकॉज सरसाई में जाते ही आपको एक असर्ट आईडी क्रिएट हो जाती है और उसी में आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है। My fifth check point when loan is closed is all outstanding is cleared or not and no dues in bank record, then bank has to issue a satisfaction of charge. जब बैंक में वो लोन क्लोज कर दिया है बोरोवर ने तो उसको सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का सर्टिफिकेट इशू करना है। अगर वो नहीं करता है तो बोरोवर उसके अगेंस्ट में सेंट्रल रजिस्ट्री में जा सकता है कि मैंने लोन पूरे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, स्टिल बैंक हैज नॉट इशूड मी अ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। So these were the overall picture of loan.
मैंने आपको एक पूरा सैंक्शन से लेके क्लोज तक का एक प्रोसेस बताया. अब नाउ इन दिस प्रोसेस यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी पॉइंट. अब अगर उस एंगल से हम ये देखेंगे तो वेदर न्यू लोन सैंक्शन प्रोसेस कमिंग टू द दिस स्लाइड, whether let down instructions are followed for sanctioning new loan and amount sanction is within the delegated power of the sanctioning authority or not, whether control returns after sanctioning of loan and discretionary power of branch manager are submitted to controlling authority for noting or not. In case of loan sanctioned by a higher authority, whether all the terms conditions are complied or not. KYC compliances. Pre-sanction inspection. Pre-sanction inspection report to be kept on record. Before sanctioning of any loan, manager or bank official must visit the property, and it should contain all the fact and specific comment for considering sanction of the loan. Loan documents. Standard loan documents are to be obtained for each type of loan with proper stamp duty, duly filled up, signed on all the pages by the borrower, guarantor, and AR in case of corporate customer. A checklist may be obtained from the branch. ब्रांच के पास जनरली ये चेकलिस्ट होती है, आप ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं. रिकवरी ऑफ प्रोसेसिंग फीस एंड अदर चार्जेस. लोन के केस में आपको प्रोसेसिंग फीस अगर रेन्यूअल है तो रेन्यूअल के टाइम पे भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज करनी है, रेन्यूअल फीस चार्ज करनी है. अदर चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आए हैं तो पिनल इंटरेस्ट चार्ज होता है, पेनल्टी चार्ज होती है. तो वो सारे चार्जेस प्रॉपरली बैंक ने लिए हैं कि नहीं वो भी देखने हैं. दिस विल बी पार्ट ऑफ योर इनकम लीकेज. नोटिंग ऑफ बैंक चार्जेस, आई एक्सप्लेन्ड यू कि आपको बैंक का चार्ज की नोटिंग करवानी है, वेदर इट इज आरओसी और रजिस्ट्रार. ओपनिंग इन द अकाउंट इन द सिस्टम. All the particulars like repayment period, limit sanction, rate of interest, product code, etc. to be checked in the system कि properly as per sanction के according उन्होंने सारा उसमें fill किया है या नहीं किया है. Post sanction inspection is also equally important because most of the cases we found that कि managers and bank officials ये गलती करते हैं. Sanction होने के बाद कोई visit नहीं करता है. Even chartered accountant also should visit sometime along with the bank official. और सारी रिपोर्ट उसकी kept, it should be kept on the record. क्या ऐसा कि आपने जब विजिट किया प्रॉपर कंडीशन में था या नहीं, सारा आपने जो भी देखा है वो आपको एनालाइज करके उसमें डालना है. और एक और चीज इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है टू एंश्योर एंड यूज ऑफ फंड. लोन जिस पर्पस के लिए लिया गया था उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है या नहीं, ये एंश्योर करना इज रियली इम्पोर्टेंट. कुछ लोन हम एफडीआर के अगेंस्ट में इशू करते हैं. उस केस में आप सिर्फ इंटरेस्ट चेक कर लीजिए 1 और 2% एक्स्ट्रा है या नहीं, उस पर लीन मार्किंग हुई है या नहीं. गोल्ड लोन के केस में सर्टिफिकेट वेट का इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्योरिटी एंड वेट वो आप चेक कीजिए प्रॉपर है या नहीं है. लोन अगेंस्ट एनएससी के केस में एनएससी शुड बी आर टू बी प्लेस्ड विद द बैंक, वो बैंक के पास होनी चाहिए. एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन के केस में एलआईसी पॉलिसी बैंक के पास होनी चाहिए. व्हीकल लोन के केस में एक ब्लैंक फॉर्म होता है 2930 जो उसको राइट क्रिएट करता है, वो आपको ब्लैंक फॉर्म लेके साइन करवा के रखना है. आरसी बुक वापस आई है कि नहीं वो भी आपको चेक करना है विद इन 1 और 2 मंथ. कुछ लोन वेयर हाउस रिसीट के बेस पे होते हैं. एक वेयर हाउस में जो गुड्स रखे हुए होते हैं उसके बेस पर भी हम 3 से 6 महीने के शॉर्ट टर्म लोन बैंक से ले सकते हैं. तो वो सैंक्शन के केस में भी आपको डिटेल्स चेक करनी चाहिए. इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग लोन पीरियोडिक इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड. उसकी रिपोर्ट आप चेक कीजिए कि कितने कितने टाइम में हुआ है. बहुत सारी बैंक क्वार्टरली इंस्पेक्शन कंपलसरी करती है, तो क्वार्टरली इंस्पेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको देखना है. रिव्यू एंड रिन्यूअल, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट
soft point in cash credit account and overdraft account. रिन्यूअल आपको एवरी ईयर कैश क्रेडिट के रिन्यूअल होने चाहिए. दिस इज द प्रोविजनिंग, आरबीआई के नॉर्म्स हैं, आयरेक नॉर्म्स में लिखा है. और अगर रिन्यूअल पेंडिंग है किसी रीजन से, तो वहां पर एक छोटा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है बैंक ऑफिशियल्स को कि आप उस अकाउंट को रिव्यू कर सकते हो, एक जिसको हम शॉर्ट रिव्यू कहते हैं. तो आप उसको रिव्यू कर लो और बाद में प्रॉपर रिन्यूअल करो. बट वो रिव्यू 3 महीने में आपको करना है और मैक्सिमम आप उसको 180 डेज तक कर सकते हो. जैसे आज आपका ड्यू रिन्यूअल ड्यू था, विद इन द 3 मंथ आप उसको नहीं कर पाते हो रिन्यूअल, हमने एक रिव्यू कर दिया, 3 मंथ्स में हमने एक रिव्यू डाल दिया, उसके आगे के 3 मंथ्स निकले. हम क्या करते हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप प्लीज देखिए, मोस्ट ऑफ द बैंक्स में यही होता है. वो अगेन 3 महीने के बाद क्या करेंगे, फिर से रिव्यू कर देंगे, उसके बाद में वापस 3 महीने हुए फिर से रिव्यू कर देंगे. और ये केसेस वो बहुत ओवर एंड ओवर पीरियड चलता रहता है. और हम जब आप उनको क्वेश्चन करेंगे, वो आपको आयरेक नॉर्म्स दिखाएंगे और बोलेंगे कि ये पीरियड रिव्यू ऑब्लिक रिन्यूअल लिखा हुआ है मैडम, इसलिए हमने रिव्यू कर दिया, तो मुझे 3-3 महीने में रिव्यू किया तो मैं अकाउंट को आगे चला सकती हूँ. अरे तुम अगर ऐसे 3 महीने में चला सकते हो तो फिर लोन की जरूरत क्या है, फिर आयरेक नॉर्म्स की जरूरत नहीं है. इट हैज बीन मेंशन इन clearly in IRAC norms, the period cannot exceed more than 180 days. 180 days for the renewal. तो आपको 180 days के बाद एक्चुअल रिन्यूअल होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड एज एन एनपीए. ये अभी लास्ट मार्च 19 का आई वांट टू शेयर वन एग्जांपल विद ऑल ऑफ यू. एक ब्रांच का जब हम ऑडिट कर रहे थे, इट वाज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, और वो बैंक का 200 सीआर के आसपास का टर्नओवर था एडवांसेस का. आउट ऑफ 200 सीआर, मोर देन 130 सीआर इज इन वर्किंग कैपिटल कैश क्रेडिट पोर्टफोलियो था. ऑल द अकाउंट वर ड्यू फॉर रेन्यूअल मोर देन 3 years. कैन यू इमेजिन दैट, जहां हम 180 की लिमिट डालते हैं, 3 years से बैंक उसको रिव्यू 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 करके चला रही है. जब हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि रिन्यूअल मुझे करना चाहिए. मैंने उनको आरबीआई के कंप्लायंसेस दिए. जब मैंने बोला आप मुझे राइटिंग में लिख के दीजिए कि मेरे को आयरेक नॉर्म बोलती है कि ये मुझे चलेगा, तब वो जाके उन्होंने बोला कि यस वी आर एक्सेप्टिंग मैडम, दिस इज अवर मिस्टेक, कि हमने रिन्यूअल नहीं किया. 3 years, can you imagine if I say that what concurrent auditor was doing since last 3 years, what previous auditor as a statutory auditor has done in the at the time of audit, I don't know. But it can be कोई भी क्वेश्चन आप पे कभी भी खड़ा हो सकता है. तो प्लीज थोड़ा सा सीसी अकाउंट के केस में रिव्यू रिन्यूअल को पॉइंट को इम्पोर्टेंट आप थोड़ा सा उसमें देखिए. अब ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट, एक बार लोन फैसिलिटी सैंक्शन होने के बाद में उसमें ट्रांजैक्शंस क्या हो रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना प्रॉपर सोर्स है नहीं है, कैसे है, टर्नओवर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. अगर टर्नओवर नहीं होता है तो पुअर टर्नओवर के बेस पे भी अकाउंट एनपीए क्लासिफाई होता है. सारी रिसीट्स उसकी उसी अकाउंट से रूट हो रही है या कोई और बैंक से रूट हो रही है. स्टॉक स्टेटमेंट मंथली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. स्टॉक स्टेटमेंट भी अगर मोर देन 3 months पेंडिंग है तो अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड एज एनपीए. इन शॉर्ट, जो भी एसेट्स बैंक ने कोलेटरल प्राइमरी में रखी है, वो एसेट्स इंश्योर्ड है या नहीं है, दैट यू नीड टू सी. और पॉलिसी पे बैंक का नाम लिखा है कि नहीं, पॉलिसी बैंक के पास है या नहीं. रीपेमेंट रीशेड्यूल के केस में, इन केस ऑफ जेन्युइन डिफिकल्टीज आती है कुछ रीशेड्यूलिंग के केस में, रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया कि हम उस अकाउंट को एनपीए से बचाने के लिए रीशेड्यूलिंग करते हैं. तो रीशेड्यूलिंग के केस में आपको सारे प्रोविजन वेरीफाई करने पड़ेंगे. There are some audit checklists which I have already covered in my explanations. You can read out this. This is very, I mean, point by point you can read out. I will share my presentation with all of you. I will little bit touch upon the asset classification point. As I mentioned you, asset is classified into two parts. First is performing and the second is non-performing. Performing is standard assets जिसमें कोई problem नहीं है, easily चल रही है. नॉन परफॉर्मिंग
again is classified into three parts: standard, doubtful, 1 2 3 and loss. So based on the period and repayment अगर नहीं होता है, more than 3 months है या 90 days है, क्या क्या basis है, these are the NPA norms. कि interest and installment and principal if remain overdue for a period of more than 90 days in respect of term loan, account will be classified as NPA. ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट के केस में अगर 90 डेज से ज्यादा उसका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर होता है, ड्राइंग पावर रिड्यूस हो गई है, स्टॉक स्टेटमेंट नहीं है, सो देर आर सो मेनी अदर रीजन, तो उसके बेसिस पे भी अकाउंट एनपीए क्लासिफाई होता है. बिल्स परचेज के केस में अगर ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज बिल्स हो गए हैं, देन अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए. तो एनपीए कब क्लासिफाई होता है? तो फर्स्ट वो सब स्टैंडर्ड एसेट में क्लासिफाई होता है. सब स्टैंडर्ड में वो कब तक रहेगा? फॉर द 12 मंथ. अगर मेरा अकाउंट कंटिन्यूअसली एनपीए फॉर 12 मंथ रहता है, तो दैट एसेट विल बी क्लासिफाई सब स्टैंडर्ड एसेट. आफ्टर 12 मंथ वो डाउटफुल में चली जाएगी, डाउटफुल 1 में. अगर डाउटफुल 1 में 1 साल तक रहती है तो वो डाउटफुल 1 है. अगर 1 to 3 years रहती है तो वो डाउटफुल 2 कैटेगरी है. और मोर देन 3 years है तो वो डाउटफुल 3 कैटेगरी है. तो जनरली इन द एट द टाइम ऑफ कंकरेंट ऑडिट हम एनपीए पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं करते हैं, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू. और डिपेंडिंग ऑन द पीरियड फॉर विच द एसेट हैज रिमेन्ड इन डाउटफुल कैटेगरी. एक होता है लॉस एसेट, जब बैंक को ये श्योरिटी हो जाती है कि अब उस एसेट से मुझे कुछ भी नहीं आने वाला है, या मेरा वो बैंक का पैसा कंप्लीटली डूब चुका है, तब उस एसेट को हम लॉस एसेट में डाल देते हैं. तो दिस वाज द कैटेगरी. नाउ प्रिवेंशन के लिए क्या है कि आपको एवरी मंथ रिव्यू करने हैं सारे ओवरड्यू अकाउंट, ताकि वो एनपीए में नहीं जाए और आप पहले से उनको अर्ली वार्निंग सिग्नल दे दें. कुछ ऐसे में अकाउंट होते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ऐसे में 1 2 3 ये कैटेगरी होती है बैंक में, 1 more than 30 days. तो वो अकाउंट स्पेशल वॉच के होते हैं. आप वेल इन एडवांस वो अकाउंट की लिस्ट बनाइए, पहले दीजिए बैंक को और उनको फॉलो अप के लिए बोलिए. और एक बार अकाउंट एनपीए क्लासिफाई हो गया तो वो अकाउंट उस बोरोअर के अगर दूसरे भी अकाउंट है तो सारे अकाउंट एनपीए में चले जाते हैं. अब एनपीए की प्रोविजनिंग कैसे होती है? जब अकाउंट सब टेंडर में है तो हम उसका प्रोविजन 15% ऑन सिक्योर्ड पोर्शन एंड 25 अनसिक्योर्ड पोर्शन पे करते हैं. अगर डाउटफुल 1 में है तो 25%, 2 में है तो 40, 3 में है तो 100 और लॉस के केस में 100. एनपीए अपग्रेडेशन क्या होता है? ऐसा होता है कि कई बार मेरा एक बार अकाउंट एनपीए में चला गया, लेकिन मैंने उसको फिर से बोरोवर ने उसको ईएमआई भर के रेगुलर कर दिया, तो वो अकाउंट मेरा फिर से अपग्रेड हो जाता है फ्रॉम एनपीए टू फ्रॉम सब स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड अकाउंट. दिस इज कॉल्ड एनपीए अपग्रेडेशन. तो ये केसेस में आपको वो अकाउंट ज्यादा देखने की जरूरत है कि क्या बेसिस पे अकाउंट अपग्रेड हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, उसमें आया भी है या बैंक ने सिर्फ ऐसे ही एंट्री पास करके उसको किया है. तो देर आर सम अर्ली वार्निंग सिग्नल. जो ये पॉइंट अगर आप देखते हैं बैंक में, तो आप काफी अच्छे से आपको वेल इन एडवांस काफी सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं. अगर किसी अकाउंट में चेक बाउंस हो रहे हैं, हाई वैल्यू चेक बाउंस हो रहे हैं, दिस इज अ वार्निंग सिग्नल. उस बोरोअर के इनकम टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, जीएसटी ये सब टाइम पे नहीं हो रहे हैं. कोई प्रोजेक्ट लोन है और उसके स्कोप में फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, तो वो अकाउंट देखने लायक है. इंश्योर्ड इन्वेंट्री थी बट अंडर इंश्योर्ड इन्वेंट्री या ओवर इंश्योर्ड है, आपको लगता है कि ये स्टॉक का वैल्यू इतना है लेकिन मैंने इंश्योरेंस इस पे जबरदस्ती का ज्यादा लिया है, दिस इज द वार्निंग सिग्नल. इनवॉइसेस विदाउट जीएसटी एंड अदर डिटेल्स, आपके पास में अगर बोरोअर विदाउट जीएसटी और बिना डिटेल का बिल देता है तो दिस इज द वार्निंग सिग्नल. आप उसकी डिटेल्स अच्छे से चेक कीजिए, इट कैन बी पोस्ट बिल. टाइटल ऑफ द कोलेटरल सिक्योरिटी में अगर डिस्प्यूट है, जैसे कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है और दूसरे ओनर ने उसके ऊपर स्टॉप डाल दिया है कि आप उसको डॉक्यूमेंट्स को शेयर नहीं करेंगे विदाउट माय परमिशन, दैट अकाउंट शुड बी मॉनिटर्ड प्रॉपरली. फंड कमिंग फ्रॉम अदर बैंक टू लिक्विडेट द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट,
foreign bills remaining outstanding for long time. These are the uh, point where you need to look into this account. कोई रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुई है बोरोअर से, पोस्टपोन द इंस्पेक्शन ऑफ द गोडाउन फॉर फ्लिमजी रीजन. जेन्युइन रीजन है तो समझ में आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, चाहे स्टॉक का हो या प्रॉपर्टी का हो, अगर बोरोअर जानबूझ के उसको डिले करता है तो दिस इज द अर्ली वार्निंग सिग्नल फॉर यू टू चेक दिस अकाउंट प्रॉपरली. उसके ड्यूज आउटस्टैंडिंग है, वो अकाउंट आप देखिए अच्छे से. फाइनेंसिंग ऑफ यूनिट अगर बहुत ब्रांच के दूर है तो भी एक क्वेश्चन आता है कि जब उसके पास में कोई ब्रांच थी तो उसने वहां से क्यों नहीं करवाया, हमारे यहाँ से क्यों करवाया है. बैंक गारंटी अगर फ्रीक्वेंटली इन्वोकेशन और डिप्लॉयमेंट होती है तो वो भी एक सिग्नल है. फंडिंग ऑफ इंटरेस्ट बाय सैंक्शनिंग एडिशनल फैसिलिटी. बैंक अगर किसी को इंटरेस्ट पोर्शन को बार बार फंड कर रही है और उसको टर्म लोन में कन्वर्ट कर रही है, दिस इज द वार्निंग सिग्नल फॉर यू. सम कोलेटरल चार्ज टू अ नंबर ऑफ लेंडर्स. कोई एक ही कोलेटरल बहुत सारे उसके लेंडर्स हैं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 20-20 लाख के 5 लोगों ने लोन ले रखे हैं, दिस इज अगेन अ वार्निंग सिग्नल. प्रमोटर डायरेक्टर का स्टेक में रिडक्शन होना, बिकॉज ये हो सकता है कि जब ये लोन लेना था तब उन्होंने स्टेक ज्यादा दिखाया और अब उसको कम कर रहे हैं. कंपनी में ऑल ऑफ सडन की पर्सनल का रिजाइन करना या उसके मैनेजमेंट में बार बार चेंज होना. Large number of transactions with interconnected companies and large outstanding from such companies. Significant movements in inventory disproportionately higher than the growth in turnover. Turnover से ज्यादा inventory movement दिखता है. Turnover से ज्यादा receivables के movement दिखते हैं. Significant increase in working capital borrowing as percentage of turnover. टर्नओवर के बेस पे अगर हम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं और उसमें अचानक से इंक्रीज हो जाना. स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई क्रिटिकल इश्यूज हाईलाइटेड हैं वो आप देखिए अच्छे से. ह्यूज कैश और कैश इक्विवेलेंट बोरोअर दिखाता है अपनी बैलेंस शीट में और उसमें इंक्रीमेंट दिखता है, दिस इज द वार्निंग सिग्नल फॉर यू. लाइबिलिटीज अपीयरिंग इन आरओसी सर्च, अगर ऐसा है दिस इज द वार्निंग सिग्नल. Substantial related party transaction, please see very carefully. कोई एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्रिपेंसीज दिखती है, जनरल पर्पस लोन का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में लोन ट्रांसफर बहुत ज्यादा हो रहे हैं किसी एक बोरोअर के, कोई एडहॉक सैंक्शंस है जो बार बार बैंक एक ही बोरोअर को दिए जा रही है, सेल प्रोसीड प्रॉपर रूट नहीं हो रही है उसी बैंक से जिस बैंक में फैसिलिटी ली है. LC issued for local trade related party transactions, high value RTGS payment to unrelated party, heavy cash withdrawal, non-submission of original bill या hesitation in submission of original bill. तो ये सारे पॉइंट्स आपके चेकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना है. तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया था बैंकिंग, जनरल बैंकिंग, लोन्स एंड एडवांसेस. इसके अलावा बैंक कुछ अदर सर्विसेज भी देती है, लॉकर की सर्विस, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, बिल कलेक्शन, टैक्स के कलेक्शन, डीमेट अकाउंट, फॉरेन ट्रांजैक्शन, क्रॉस सेलिंग. तो ये सारे पॉइंट भी आपके चेकिंग के हो सकते हैं. लॉकर ऑलवेज बहुत हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट लॉकर ऑलवेज सेंसिटिव हो सकते हैं अगर हम उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं देते, बिकॉज बहुत से केसेस में हमको दिखते हैं ऑपरेटिव लॉकर्स नहीं है काफी टाइम से, उसके नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं. तो ये सारे पॉइंट आपको डिस्कशन में, आपके चेकिंग में इंक्लूड करने चाहिए. करंट अकाउंट से एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर इज, आरबीआई ने जब भी करंट अकाउंट 2015 में न्यू गाइडलाइन इशू की थी उसमें उन्होंने ये बोला है, आरबीआई एडवाइजिंग बैंक टू compulsorily ensure that their branches do not open current account of entities which enjoy credit facilities from the banking system without specifically obtaining a no objection certificate from the lending bank. So which means अगर आपके पास में बैंक के पास कोई करंट अकाउंट ओपन के लिए आता है, पहले उसको उसका सिबिल चेक करके
एक क्रिलिक अकाउंट होता है। क्रिलिक क्या होता है, 5 करोड़ से ऊपर अगर कोई है तो वहां पर क्रिलिक अकाउंट होता है और उसमें उसकी डिटेल्स जाती है। तो आपको पहले उससे ये पूछना है उसका किसी और बैंक में भी अकाउंट है क्या, करंट अकाउंट। अगर है तो उस बैंक से एनओसी लेना पड़ेगा और उसके बाद आप उसका करंट अकाउंट यहाँ ओपन कर सकते हैं। तो इन करंट अकाउंट देयर आर सम पॉइंट्स नीड फॉर द डिसिप्लिन, और इफ इट इज नॉट फॉलोड और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो पेनल प्रोविजंस कैन बी इम्पोज्ड फॉर द नॉन कंप्लायंस। Apart from this, some internal control function you need to check, the delegation of power, authorization of transactions, बैंक में जो transaction हो रहे हैं उसके लिए जो person authorized है वही transaction कर रहा है या कोई और कर रहा है। Segregation and rotation of duties, this is also important. एक person एक पोजीशन पे और एक जॉब पे ज्यादा दिन नहीं होना चाहिए, बैंक में रोटेशन ऑफ ड्यूटीज होती है। एडिक्वेट रिकॉर्ड मेंटेन है या नहीं है, सेफ गार्डिंग ऑफ इंटरेस्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। दीज आर द कंट्रोल फंक्शन, इंटरनल कंट्रोल विच यू नीड टू चेक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड एट लास्ट, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज रियली इम्पोर्टेंट। आप कंटेंट ऑडिटर हैं तो आप एक दो फाइल बनाइए, एक मास्टर और परमानेंट फाइल, एक करंट फाइल। इन परमानेंट फाइल आपकी लेटर ऑफ एंगेजमेंट, बैंक से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, ऑडिट चेकलिस्ट, डेटा, जो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन आपको मिली है जोनल से, नोडल से, ब्रांच से, वो सारी इंफॉर्मेशन, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल रेवेन्यू रिपोर्ट का परफॉर्मेंस, this you can keep it in your master file. And in current file, you may include audit, branch audit program, audit documentation, आप क्या एक्सेल यूज करते हैं, क्या बेस पे आप डिसीजन और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, सॉफ्ट कॉपी ऑफ एविडेंसेस, ये सब आपको करंट फाइल में मेंटेन करना है। ब्रांच के स्टेटमेंट, रिपोर्ट हमारी जाने के बाद ब्रांच के क्या क्या स्टेटमेंट थे, इरेगुलरिटीज उन्होंने सॉल्व करी, ब्रांच ने कब रिप्लाई दिया, पीरियोडिक कॉरेस्पॉन्डेंस, इरेगुलरिटी जो हमने कंट्रोलिंग अपर अथॉरिटी को अगर मेंशन की है तो उसकी कॉपी, डिस्कशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, बिग बोरोअर्स आपको लगता है कि इसके पर्टिकुलर्स मुझे रखने चाहिए तो वो आपको रखना है। So these can be the part of your documentation. And apart from these other reports which generate in the system itself, in CBS system, serious irregularities regarding fraud, daily transactions, monthly report, quarterly report, risk-based audit report, and compliance of audit report. And these are some mandatory and statutory compliance which you need to check. Filing of creation, modification of charge before ROC, equitable mortgage registration हुआ है या नहीं, सब रजिस्ट्रार, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, ईएम ऑफ टाइटल डीड का बिफोर सब रजिस्ट्रार को हमने दिया है कि नहीं, प्राइम सिक्योरिटी इंश्योर है कि नहीं, सेकेंड सिक्योरिटीज इंश्योर है कि नहीं। So this was all about from my side regarding the concurrent audit. I tried to incorporate most of the matter in this my presentation, but we all know that concurrent audit is a ocean, and it is not possible to explain each and every aspect of concurrent audit in just 2 hours. But so I hope this is, I mean, this is from my side, it's my humble submission. So thank you so much. If you have any query or questions, I would love to answer. Over. Members may raise queries. Ma'am, is there any query in your chat box? I think questions are there. Let me One question was, what is the margin on paid staff? Okay. Margin, say example, borrower has submitted stock of rupees say 20 lakhs. तो उसको 20 lakhs का तो पूरा
पूरा वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी नहीं मिलेगा, तो बैंक उस पर मार्जिन रखता है, फॉर एग्जाम्पल 15% और 20%, तो उतना डिडक्ट करने के बाद ही हम उसको फैसिलिटी एंजॉय करने के लिए देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं मार्जिन। तो मेरा 20 लाख का स्टॉक है, उस पर 15% मैं रिड्यूस करूंगी और उसके बाद जो अमाउंट आता है, दिस इज अवेलेबल फॉर द एलिजिबिलिटी। I'm not able to see any other questions apart from this. Yes, madam. There is no other question. I request Bhavesh Mali to give vote of thanks. One question is there: if renewal not done timely, then between time processing charges collected? Yes, yes, processing charges should be collected because it is due for the renewal. But you can't take it on double कि जब अभी नहीं किया renew और बाद में जब किया तब भी ले लिया, because जब it is due for renewal, at that time you should collect it. Yeah, it is overdue. Thank you, Amit. Thank you, Sweta ji, for giving a wonderful and sharing a very good experience of bank audit. I think in today's environment, where the banking industries is facing a very problem, and we chartered accountant is very much helpful to detecting early warning signals and very helpful to the bank management to giving a very fruitful information about his loan and other areas of transaction. And in today's session, I thought that every auditor who conduct a concurrent audit or a statutory audit, it's a very much useful for everyone to understand these things, banking transactions, and all these things. So I once again thankful on behalf of Navsari branch. I thankful Sweta ji for giving a wonderful lecture. Thank you. Conference. Thank you. Thank you Thank you, so much. madam. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you.